Abdul and Zainab here at Autism Empowerment Group. हमारे पिछले लाइफ को लेके अब कुछ वक्त हो चुका है एंड द रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली मैं और ज़ैनब पहले ऑटिज्म पेरेंट्स हैं, उसके बाद फिर हम इधर कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे लॉकडाउन्स भी चल रहे थे, वर्चुअल स्कूलिंग भी चल रही थी एंड आई टुक सम टाइम ऑफ टू एक्चुअली स्टडी अ लिटिल बिट and I will give some introduction in a little bit about what I've been up to. Today we're joined by Zainab. Zainab is here. She is a good friend of mine and actually came to know her through the community. Zainab, आप अपने बारे में थोड़ा introduction दें क्योंकि हमारे viewers ने आपको आज से पहले सुना नहीं. Assalamu alaikum everyone. So I'm Zainab Qadeer. सबसे पहले तो I'm an autism mom. So this is where I'm passionate. I'm very, very interested in. Actually, my story is just like everyone, right? हम लोग सारे इसी journey से start हुए हैं. Although I was born and raised and in such a homeopathic alternative environment, but I was never convinced as much as I was since my son was diagnosed. So uske baad jo hai na, the new world that opened up to me, I realized the importance of it all. And bas uske I mean software engineering chhod ke phir autism education shuru kar di aur phir Absolutely. Yeah, so it was like overall holistic approach and actually it's such a long journey. I mean, it would take hours to explain what we went through, but I the more important thing is that throughout my journey, no matter where you are, the more important thing is that what keeps you going is the support. And that's what we are trying to do. We're trying to give back, and we are trying to do what we think worked for us. So I'm so excited to be here. Welcome to you, Zainab. Thank you for being here. और actually आज का topic हमारा जो है वो बहुत मेरे और ज़ैनब के दोनों ही दिलों से करीब है. Anxiety is something जो कि हमने personal level पे experience की है, हमने as a parent experience की है, हमारे बच्चे रोज experience करते हैं, especially the ones who are on the spectrum or delayed with their speech, potentially non-verbal. तो आज का टॉपिक जो है उस पे हमें बहुत सारे सवाल भी आए, आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट भी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम गोइंग टू प्ले, वी पुट टुगेदर कपल ऑफ स्लाइड्स, इवन दो हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेशनल या बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो टू फॉलो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोगों से डिस्कस करें. सो फॉर दोज हु डोंट नो, in the last 1 year, I have gone ahead and studied and become certified as a holistic health practitioner. Obviously, मैं as a parent एक biomed journey पे रही हूँ for a long time. My son is turning 8 this month, mashallah. And so I decided that I should pursue it as well. Zainab comes from an extensive homeopath background. Zainab के parents भी homeopathic doctors थे. Zainab खुद भी homeopathic doctor रही हैं. तो उनके पास एक जिसे कहते हैं treasure hai of knowledge, which she shares with us. So I am so grateful for that. You can check out me and Zainab on our social media handles. हम दोनों ही के YouTube channels भी हैं और हम दोनों ही काफ़ी active हैं community के साथ in working through different topics and supporting the community. तो आज के टॉपिक को लेके हमने डिसाइड किया है कि हम एंग्जाइटी और रेगुलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं when it comes down to autism. ठीक है. So actually Zainab, जब पहली दफ़ा autism मेरे बेटे का डायग्नोस हुआ था, अयान का, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ हिट की थी वो मेरी खुद की एंग्जाइटी थी. I mean obviously अयान की एंग्जाइटी मौजूद थी और वो डायग्नोसिस के साथ कॉमन है, लेकिन मुझे ये था कि मुझसे अपनी एंग्जाइटी भी रेगुलेट नहीं हो रही, तो how do I help him? What are your thoughts about that? Actually, this is very important because अब ये इन कई चीजें जिस तरह सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अगर आप को एड्रेस करते हैं या कोई और चीज है ऑटिज्म में या ऑटिज्म से रिलेटेड आप उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो मे बी एज अ थर्ड पार्टी करते हैं. एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस की है. सो जब आपके बच्चों को होता है तो आपको टू सम वे आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन योर ओन टू, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस्ड इट. किसी ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ, किसी ना किसी टाइम पे आपने एंजाइटी जो एंग्शियस माइंड जो है वो तो
हमेशा साथ साथ चलता रहता है. So this is very interesting actually. मैंने एक चीज नोटिस की थी ज़ैनब कि जब मेरी एंजाइटी ज्यादा थी तो अयान की एंजाइटीज तो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल थी. क्योंकि ये हम शायद रियलाइज नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चों की नीड्स होंगी और हमें उनसे एक डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन हम भी अपनी एंजाइटीज उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं. Anxious parents will always raise anxious child, right? Exactly, that's true. That's 100% true. So I've put together a couple of tools as to what people can do to feel supported. I think कि ये group और groups like these सिर्फ मेरा ही नहीं, इधर बहुत सारे हमारे mentors मौजूद हैं, expert parents मौजूद हैं, काफी community में support groups अब develop हो चुके हैं. And it is very important कि parents should be part of a group like that, जिधर आपको एक सपोर्ट मिले, लाइक माइंडेड पेरेंट्स के साथ बात करने को मिले, और जिसको मैं कहती हूँ सेफ स्पेस. वो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हमारे मुआशरे में तो ऑटिज्म को लेके सपोर्ट भी नहीं है हमारी फैमिलीज के साथ. तो फाइंडिंग दैट फॉर योरसेल्फ इज सुपर इम्पोर्टेंट. और इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग देखें, ये इट्स लाइक अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, हम लोगों को वी हैड लाइक a parent and she shared something that she went through, and I told her there's no perfect parenting. Everybody is trying their best, right? So anxiety को भी आप you cannot eradicate it. आप बिल्कुल इसको खत्म नहीं कर सकते भाई I have become this person who's never anxious. Actually that's not a healthy person too, because this is our natural response. तो सिर्फ आप इसको ना, that's why it's more important. कहीं से भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये नहीं है कि मैं और बतूल we know it all और हमें सब पता है, हम तो बिल्कुल, it's actually a learning journey for us as well. और आप जब इससे गुजरते हैं, खुद गुजरें या आप अपने बच्चे को हेल्प करें, उसमें आपको every time you learn something new. और and that's why we are here to talk about this, to actually have a dialogue. To share what worked for us, and we are open. Please, हम लोग we really would appreciate आप भी अपने वो input दें what worked for you, and that would be something that is maybe we will learn. In fact, like मेरे नज़दीक ये आप डेली अगर अपने लिए थोड़ा सा भी वक्त निकालें, आप उसमें अगर प्रेइंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजार रहे हैं टू डू समथिंग दैट यू लाइक टू डू, जो कि थोड़ा ऑटिज्म से बाहर हो. सिर्फ ऑटिज्म के बारे में रीडिंग करने से इंसान और एंग्शियस हो जाता है. तो आप कुछ और रीड करें जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करे. और डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक्चुअली यू नीड टू सिट विथ योर फीलिंग्स एज वेल. तो मेरे नज़दीक ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ट्राई की. आई थिंक वॉकिंग एंड सम लेवल ऑफ मूवमेंट हेल्प्स आवर मदर्स अ लॉट. इट प्रोड्यूसेस सेरोटोनिन नेचुरली, राइट? सो यू वांट दैट टू बी डन नेचुरली फॉर यू. इसके अलावा आई थिंक इसमें कोई भी हर्ज नहीं है कि अगर आपको लो मूड हो, डिप्रेशन हो, तो आप किसी थेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से भी रुजू कर सकती हैं. हमारी जो वेबसाइट है healthjunction.com की, उसके अंदर we actually have a couple of psychotherapists as well. So please touch base and ask if you think you need help. और इसके अलावा भी अगर आपको सिर्फ किसी से बात ही करनी हो तो आप मुझे और ज़ैनब को कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, फेसबुक भी मौजूद है, एंड वी वुड love to support you. इसके बाद जो बात आती है वो है हमारे बच्चों की एंजाइटी और उनका जो इमोशंस हैं और उन इमोशंस को कैसे मैनेज करना. और इसके ऊपर ज़ैनब हमें 2-3 चीज़ें बताएंगी जो कि उन्होंने भी सीखी हैं और उनके नज़दीक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू पेरेंट्स, स्पेशली द वंस हु आर न्यू टू ऑटिज्म. एग्जैक्टली. अब देखें, राइट, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि इट डजंट मीन दैट दिस इज द परफेक्ट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी. आई नो जो रिएक्टिव पेरेंटिंग है वो एक्चुअल पेरेंटिंग है. दैट दिस इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स. और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम रिएक्टिव पेरेंटिंग से अपने आप को ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की तरफ लेके जाएं. और ये जो मैंने सिनेरियो फॉर एग्जांपल ये लिखा है, उसमें ऐसा ही है कि जब कोई मेल्टडाउन है या टेंट्रम है या एंग्शियस सिचुएशन है या कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है, उसमें क्या होता है कि मोस्टली आप क्या करते हैं कि आप यू गेट टफ एंड यू सेट लिमिट्स. भाई ये दिस इज नॉट पॉसिबल, यू गेट अपसेट. या आप क्या करते हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली 360 डिग्री एग्जैक्टली ऑपोजिट रिस्पॉन्स है, यू जस्ट अलाउ
and you encourage avoidance, right? Like आप कहते हैं अच्छा मुझे क्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, and you just like, you know, you just step back. So either you are like very there and you're like with a hammer कि अबे जी ये क्या है, ये नहीं होगा, और या दूसरे में दोनों मैंने एटीट्यूड्स देखे हैं, कॉमनली देखे हैं, और या जो है बिल्कुल आपने छोड़ दिया और आपने कहा कि भाई जो हो रहा है वो होता रहे और मैं तो बस इधर बैठ के एज एन ऑडियंस आई विल। और जो उसके अलावा क्या होता है कि आप जो है ओवरली डायरेक्टिव होते हैं, मतलब कि बार बार जो है वो एक एक अगर टोकते एक हैं, बच्चा राइट, बार बार टोकते हैं कि और ये करो, exactly, ऐसे बैठो। आई मीन एक्चुअली मैं ऐसे मॉम से मिल चुकी हूँ, और वो इट्स नॉट कि दे आर बैड पेरेंट्स, वो ये exactly, बैड पेरेंटिंग में नहीं कर रहे, बट इट्स लाइक कि अगर हम इनफ टाइम टोकेंगे तो समहाउ बच्चे की समझ में आ जाएगा कि उसने किस तरीके से सही से बिहेव करना है। हाँ वो एक बच्चा पहले ही एंग्शियस है और फिर आप उसको ओवरली उस इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द लर्निंग दे से ओनली आवर माइंड्स वुड बी काम इफ आवर बॉडीज वुड बी काम। सो आपका ना एक लर्निंग या जो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है ना इंफॉर्मेशन, उसका भी टाइम होता है। जब वो एक टेंट्रम मेल्ट डाउन एक एंग्शियस सिचुएशन में है और उस वक्त जो आप ओपनली डायरेक्टिव होंगे, तो दिस इज नॉट डेफिनेटली द राइट एटीट्यूड, बट दिस इज समथिंग दैट वी ऑल डू, बिकम इम्पेशेंट, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। ये भी वही, आई थिंक इट्स द सेम। सो दिस इज व्हाट is the general reaction, which is called reactive parenting, जो कि generally by default it's not like this, we don't have to learn, this comes naturally. We also talk about कि जब हम impatient और frustrated हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ? we yell at them, we take it out on themselves, yeah, right, and then उसके बाद we feel guilty कि यार ये हमने क्या किया, we got caught up in our own emotions. तो it goes back to what I was saying before as well कि पहले आप खुद calm down हो, अपनी एंजाइटी के ऊपर आपकी खुद की जो है वो होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। what would you like to say to parents जिनकी जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनकी नहीं समझ में आ रहा how to connect with their children in that moment in time? एक्चुअली इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बात की थी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप एंजाइटी एक ऐसी चीज है आपने खुद भी एक्सपीरियंस की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू स्टार्ट टू टीच समबडी, फर्स्ट हम लोगों ने खुद इसको मॉडल करना है। और इसलिए कनेक्टिंग टू एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें है मॉडल emotional regulation and good behavior and coping technique. So for example, and actually this doesn't have anything to do with autism. ये एक natural एक जो parenting का part of life है, उस इसलिए क्योंकि आप जो भी मॉडल करेंगे आपका बच्चा जो है वो बाय डिफॉल्ट विदाउट यू ट्राइंग वो सीख रहा होगा, वो उसको फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले आपने मिरर कर रहा होता है, बिल्कुल आपने सबसे पहले अपने आप को चेक करना है कि भाई आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हिच इज व्हाटएवर योर चाइल्ड इज डूइंग, तो आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर जब बच्चे की मर्जी का काम नहीं हो रहा होगा, वो भी तो वही काम करेगा ना, आपके ही मिरर करेगा इमोशंस को, आपकी कोपिंग टेक्निक्स को फॉलो करेगा कि वो आप जो है शाउट करते हैं, येल करते हैं, ये इफ यू थ्रो थिंग्स और व्हाट जो भी आपका वो है। इसलिए खैर ये सेकंड पॉइंट था। जो फर्स्ट पॉइंट था, लिसन, वैलिडेट एंड एम्पैथाइज विद योर चाइल्ड एक्सपीरियंस। और ये अगेन गोइंग बैक कि आप ये सोचें, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कई दफा देखा है लोग, अगर आप अब, और ये बड़ा फनी है, वो हम लोग तो इधर अभी आजकल इतनी स्नो हो रही है और हम लोग वो मजाक करते हैं कि आपको उतनी जैकेट्स पहननी पड़ती हैं जितनी आपकी माँ को ठंड लग रही हो ना। तो इट्स लाइक यू हैव टू थिंक कि नहीं सर्दी बहुत है क्योंकि आपको ठंड लग रही है, अब आप कहते हैं नहीं और पहनो। हालांकि बच्चे जो है वो दे आर सो एक्टिव, उनको शायद इतनी ज्यादा इतनी नहीं लगती। हाँ सो इसलिए एक्चुअली देयर इज अ लर्निंग कर्व टू इट, राइट, कि आपने अपने से नहीं सोचना कि मुझे तो कोई ऊंचा, मैं तो बर्थडे पार्टी पे बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और या सारे रिश्तेदार मुझे मिल रहे हैं तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो आपका बच्चा जो है वो एक्साइटेड क्यों नहीं है, वो क्यों इरिटेट हो रहा है, उसको क्यों ये, मुझे तो बिल्कुल मजा आ रहा है, मुझे तो गाना बड़ा पसंद है, यू नो लाइक दिस। सो आपने ये राइट, like we're all guilty of this. हम सबने ये किया है कि ये you know, फिर इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। मगर अगर आप वक्त से पहले सोचें, थोड़ा प्रोएक्टिवली होके सोचें कि अच्छा ठीक है, टू टेक योर एग्जांपल कि मैं शादी में जा रही हूँ, उधर शोर होगा, उधर लोग होंगे, वो लोग जो हैं वो प्रॉक्सिमिटी का इतना ध्यान नहीं करेंगे, वो बच्चे को आके छुएंगे, सवाल पूछेंगे,
तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी क्लास में जाते हो, आई मीन लाइक वो सारे क्वेश्चंस। तो आपने फिर वक्त से पहले आगे का सोचना है, ना कि ये कि आप अनप्रिपेयर्ड बच्चे को लेके वहां पहुंच जाएं एंड कि आपके बच्चे के जो है वो नीड्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, और फिर बच्चे का उधर मेल्ट डाउन हो। तो वो चीज एक आपके लिए भी अब एक वो बन गई, आप भी परेशान हो गए और बच्चा भी परेशान है, नाउ नो वन हैड अ गुड टाइम। तो जस्ट थिंकिंग अहेड आल्सो हेल्प्स। बिल्कुल। और इसमें ये I want to connect this plan ignoring for behaviors that are not dangerous, ये important इसलिए है क्योंकि allow और encourage avoidance। अब आपका ये फैसला, for example, कुछ situations होती हैं जिसमें आपको कोई dangerous situation है, कोई ऐसी situation है जो आप नहीं समझते कि आपको अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए, so definitely you should stand up for your child and you should not take him। आप उसको लेकिन ये कहना कि मैं बर्थडे पे नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आप करते इस वजह से क्योंकि आप कंप्लीटली आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा नहीं उधर जाएंगे तो उसको आपका बच्चा अपसेट होगा, वो एंग्शियस होगा या एंजाइटी होगा, एंड यू आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ इट एंड यू जस्ट अवॉइड इट ऑल टुगेदर। ये बिल्कुल राइट एटीट्यूड नहीं है। इसलिए दिस विल नॉट हेल्प नॉट यू और योर चाइल्ड। स्मॉल बेबी स्टेप्स प्लान करना, स्मॉल बेबी लाइक आप ये सोचे अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी, मैं आधा घंटा रुकूंगी, मैं जाऊंगी, मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैंने ये काम करना है। आप कंप्लीटली उसको अवॉइड करके बैठ जाएंगे तो आप 2 साल नहीं ये काम करेंगे तो you're still there after 2 years. Yeah, that's You true. get it? So it's important to actually move forward. It's not like, and make it a part of life. Unless it's like a dangerous situation, it's a completely avoidable situation. वो नहीं unnecessary भी आपने बच्चे को एक्सपोज नहीं करना। ये नहीं है कि आपको अंडरस्टैंड होना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई उसके क्या इमोशंस हैं, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आप कंप्लीटली उसको अवॉइड कराएंगे तो फिर देयर इज नो वर्क, देयर इज नो मूविंग फॉरवर्ड विद दैट। ग्रोथ आल्सो, राइट? तो बच्चे ने भी कुछ नहीं सीखा और आपकी भी अपॉर्चुनिटी लूज हो गई सिखाने की। ये गिव रिमाइंडर्स में क्या ख्याल है आपका ज़ैनब, ये कैसे हम कर सकते हैं? लाइक जब सिचुएशन ऑलरेडी, आई मीन आई गेट कि रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का हिस्सा है, तो रिमाइंडर्स एज इन वक्त से पहले या ड्यूरिंग द एपिसोड? अच्छा, ये एग्जैक्ट, सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम बीइंग ओवरली डायरेक्टिव, राइट? कि भाई आप एक सिचुएशन में हैं और आप बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और जो डायरेक्शन होती है डायरेक्ट उसमें और रीअश्योरेंस, एक्सेसिव रीअश्योरेंस और रिमाइंडर्स में फर्क है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। मैं तो एक्सेसिव रीअश्योरेंस बहुत करती हूँ, तो आई वांट टू लर्न दिस, ये रिमाइंडर्स का हम कैसे करें? वो एक्चुअली ये तो एग्जैक्टली ये तो इतना है, वो बिकॉज ऑफ द थेरेपी आई थिंक कुछ ज्यादा इंसेंटिव बेस्ड होता है सब कुछ, तो आप लोग जो है, बट इट्स ओके। आई फील लाइक कि बिल्कुल वही वाली बात है कि दिस इज ऑल्सो अ जर्नी, राइट? इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी आर ऑल ट्राइंग द बेस्ट। और सबसे पहले डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। सो इट्स नॉट लाइक ओ इट डिडंट गो वेल, आई डिडंट डू दिस, आई डिडंट डू दिस। इस तरह तो बिल्कुल वो नहीं होगा। आप ये सोचें, अच्छा ये सोचें कि what worked and what didn't work, है ना? लिस्ट बनाएं, this worked, ठीक है ना, मैं उधर तक लेके तो पहुंच गई। लेट्स जस्ट से कि आप किसी बिजी इवेंट पे गए या कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी, लाइक सम प्लेस जो कि सेंसरी ओवरलोड होने का चांस मौजूद है, और हम अभी सेंसरी प्रोसेसिंग के ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़ैनब आई थिंक आपके बेटे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ही डायग्नोस हुआ था ऑटिज्म के साथ, राइट? तो ज़ैनब की इनसाइट्स विल बी अमेजिंग फॉर दैट। तो लाइक आप जो है वक्त से पहले उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक अ लिस्ट एंड बी लाइक दिस वर्कड फॉर मी, लेकिन जब मैं वहां पहुंच गई तो फिर इट डिडंट वर्क। तो क्या मुझे अपने साथ कोई स्क्रीन टाइम रखना चाहिए? और वो पेरेंट्स जो है उधर स्क्रीन टाइम को लेकर फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे का सेंसरी ओवरलोड चल रहा है तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू हेल्प देम। मे बी नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स कैन हेल्प एज वेल, राइट? Zainab, share some baby steps definitely. So it's like this कि ना जाने से, बिल्कुल complete avoidance से आपने ये नहीं करना उसको expose करते हैं बिल्कुल every possible way, right? So baby steps, so आप you should start from one step to another and then you realize कि भी ठीक है, और validate करना कि भी आप, और इसमें because spectrum is so huge, it's very difficult to say. इसलिए ये जो कस्टमाइज या इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत हेल्प करेंगी आपके बच्चे को, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, आप उनको डिफरेंट लेवल पे समझा सकते हैं, उनके रिमाइंडर्स डिफरेंट होंगे। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उस तरह
डेवलप नहीं होती, फिर आप उनको जितना मर्जी लेक्चर दे दें तो वो तो बल्कि बिल्कुल उनको समझ नहीं आएगी कि आप बल्कि और उनको ओवरली एंग्शियस कर रहे हैं, ओवरवेल्म कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन से, देन इट वुड बी अ डिफरेंट। और वो हम आगे जाके बात करेंगे इमोशनल टूल किट और अभी की क्या स्ट्रेटजीज हैं जो कि, और फिर इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजीज होंगी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल चाइल्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज मैं ये कहती चलूँ, मैं उस दिन डॉक्टर रॉबर्ट मिलीलो का लेक्चर सुन रही थी, तो उसके अंदर उनके बारे में मैं काफी बात भी कर चुकी हूँ ज़ैनब, इस मौजू पे तो मैं आपके काफी काम दिखा चुकी हूँ, बट तो हम वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, आजकल हमारा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, राइट। तो इसके ऊपर भी हम एक डेफिनेटली लाइव करेंगे, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और ब्रेन बैलेंसिंग के ऊपर। लेकिन उसके अंदर ये लिखा था कि आप अपने बच्चे को, जो ऑटिस्टिक बच्चा है, उसको आप न्यू सिचुएशन से, नई मुख्तलिफ बदलती हुई सिचुएशन से एक्सपोज करते रहें, बिकॉज घर में बिठा के थेरेपीज करना या उनको इंसुलेट कर देना या आइसोलेट कर देना हमारे सॉल्यूशंस का हल नहीं है। हमें जो है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना है। उससे क्या होता है कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होती है, बिकॉज ऑटिज्म इज बेसिकली रिजिडिटी, राइट? एक रिजिडिटी है और उसके अंदर फिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। फ्लेक्सिबिलिटी तब आती है जब आप थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। यस, उस चैलेंज के साथ आपको रिएक्शन भी मिलेगा, स्पेशली हमारे उन बच्चों के साथ जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग भी है, एंग्जाइटी भी है, लेकिन वी हैव टू पुश थ्रू a little bit with preparation। ये नहीं कि उनको जैसे कि ज़ैनब ने कहा उठा के डाल दिया, throw them in the deep end, और फिर ये तो हम नहीं करना चाहते। We want to set them up for success। इधर हमारे पास कुछ comments भी आ रहे हैं। Exactly। तो इधर हमें एक ने बताया है पेरेंट ने कि I took busy bag with me while going to gathering, which includes some toys and something to eat which he likes। This is a fantastic strategy। ये उनके बच्चे के लिए काम करती है, राइट? उनको पता है कि उनके बच्चे को जो है वो इस टाइम के लिए she will buy some time, वो थोड़ा सा खाना खाएंगे, थोड़े से स्नैक्स करेंगे, थोड़े से टॉयज होंगे, थोड़ा सा क्वाइट टाइम एक्टिविटीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे कि हम लोगों के लिए कार राइड्स बहुत मुश्किल होती थी, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में इट्स नॉट ईजियर, कार राइड्स तो पाकिस्तान में भी काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में तो बम्पी कार राइड्स नहीं होती, मेरे वो तो बड़े एंजॉय करते हैं बच्चे। I used to get motion sick। ये कि इसके अंदर आप अपने साथ गाड़ी के अंदर कुछ स्नैक्स, कुछ एक्टिविटीज लेके जा सकते हैं ताकि बच्चे रोए नहीं, स्टिम ना करें। स्क्रिप्टिंग एक बहुत बड़ा, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में इसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रहा है स्क्रिप्टिंग के ऊपर। तो बच्चे स्क्रिप्ट बहुत कर रहे होते हैं, तो हाउ टू मैनेज दैट, कीपिंग देम एंगेज्ड थोड़ा थोड़ा विद छोटी छोटी एक्टिविटीज, उनको थोड़ा रेगुलेट करके रखता है। अगर उनके माइंड्स एक्टिवेटेड हैं, एंगेज्ड हैं, तो फिर वो खुद भी काम डाउन रहते हैं। अभी ये मैं एक कमेंट जो आया था जो बिजी बैग का, तो ये दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब आप इमोशनल टूल किट की बात करते हैं ना, तो आई वांटेड टू से दैट कि ये इमोशनल टूल किट जो है ये फिजिकल भी हो सकती है, और ये दिस कुड बी अ लिस्ट दैट यू हैव, राइट? फिजिकली यू कुड एक्चुअली हैव अ फिजिकल बॉक्स और अ बैग और व्हाटएवर, जो कि आपको पता हो कि उसमें आपके बच्चे की फेवरेट चीजें हैं। बेशक वो, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो कोई म्यूजिकल टॉय है, या कोई बुक है, या कोई फील गुड, वो फिजिट टॉयज आर सो फेमस, वो तो इतने ज्यादा आजकल। सो कोई भी चीज हो या कोई पिक्चर्स हो, जिस तरह मेरे बेटे को एनिमल्स आर, ही लव्स इट, इट गिव्स हिम, वो उसका कंप्लीट मूड शिफ्ट हो जाता है अगर आप एनिमल्स के बारे में। आज तो वो समंदरी जानवरों के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, डिफरेंट किस्म की वेल्स, और मुझे तो पता ही नहीं था कि एक वेल शार्क भी कोई चीज होती है, मैंने कभी सीखा है। वेल शार्क होती है। नहीं, दिस इज एक्चुअली, तो फिर वो उसमें आप वो भी यूज कर सकते हैं, या आपका अपने माइंड में एक लिस्ट हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑफरिंग देम, डू यू वांट टू गो फॉर अ वॉक, आप जो, और फिर ये बतूल ने जब वॉक का जिक्र किया ना, तो मुझे अब ये चीजें ऐसी होती हैं, ये ब्लैंकेट सजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप, हाँ, जैसा मेरे बेटे के लिए वॉक रियली हेल्प्स, उसको जो है जो भी ऑप्शन, डू यू वांट टू गो फॉर अ वॉक, अब वॉक में बहुत से फैक्टर्स हैं, फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही है, वो तो सबको पता है, उसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, राइट? अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एंड दैट्स विटामिन डी व्हिच इज कनेक्टेड टू आवर बायोमेडिकल अप्रोच, एंड देन देयर इज फ्रेश एयर व्हिच वी ऑल नीड,
एंड ऑल दीज थिंग्स वर्क इन हार्मनी. तो आपको नहीं पता कि उनमें से ये मिल के को फैक्टर्स जो हैं, और इसको अंडरस्टैंड करना, जिस तरह इम्प्रूवमेंट को फैक्टर से होती है, इसी तरह प्रॉब्लम्स भी एक चीज नहीं होती कि यहाँ ये गाना ही इसको पसंद नहीं है, ये गाने की वजह नहीं, नहीं, उसमें बहुत सी और चीजें, क्या पता उसको कपड़े तंग कर रहे हो, क्या पता उस जिस चेयर पे आपने उसको बिठाया वो अनकंफर्टेबल हो. सो आई मीन ये चीजें सारी सारी कनेक्टेड हैं. तो चेयर वाली बात पे तो डोंट गेट मी स्टार्टेड. रिसेंटली हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ अबाउट टेबल टाइम एक्टिविटीज एंड दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक. मैं तो आज डिस्कस नहीं करूंगी इस चीज को, लेकिन आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जैसे कि ज़ैनब ने एक्सप्लेन किया एक अंदाज में कि रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग और रिएक्टिव पेरेंट, उसी तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी में और आपको बताना चाहूंगी जिसके बारे में आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, आप अपने जो भी थेरेपिस्ट जिससे आप काम कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं. इसके बारे में आप रीडिंग भी कर सकते हैं. तो एक तो चीज जो हमने ऑलरेडी काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस की है कि आप अपने आप को रेगुलेट करें इन द मोमेंट, जब बच्चा ट्रिगर्ड हो, एंजाइटी का उसको जो है वो इमोशंस चल रहे हों, या इवन कि वो उनकी कोई एपिसोड चल रही हो, लाइक कि वो मेल्ट डाउन हो रहा हो. तो उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे को आप कितने जल्दी उस स्टेज से काम डाउन करके लेके आएंगे, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ रेगुलेटेड यू आर. तो अगर तो आप खुद रेगुलेटेड हैं, अपने आसाब मजबूत करके रखे हुए हैं, थोड़ा जिसे कहते हैं ना दिल कड़ा करना, उस तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो बच्चा भी जल्दी से वाइंड डाउन कर जाएगा. यू विल सी इट, आप प्रैक्टिस करके देख लें, इट विल ऑलवेज हैपन. लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं, घबरा के थोड़ा और चीख रहे हैं, तो वो एस्केलेट होती जाती है. तो फर्स्ट डी एस्केलेट द सिचुएशन, ठीक है, बाय रेगुलेटिंग योरसेल्फ. इसके अंदर को रेगुलेशन की जो टेक्निक है ना ज़ैनब, ये मैंने बहुत ही जिसे कहते हैं ना हार्ड वे से सीखी थी. बिकॉज मेरे बेटे को, अयान को भी जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, हमें ट्रांजिशन से एंग्जाइटी होती थी. तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी ना कपल ऑफ स्लाइड्स के हमने वो कैसे मैनेज किया. तो ट्रांजिशंस को लेके अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ड्यूरिंग द डे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एंग्जाइटी होने वाली है, तो वर्क इन एडवांस लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एंड इन द मोमेंट आप को रेगुलेट करें, ठीक है ना. जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई अब बच्चा रो रहा है, जमीन पे गिरा हुआ है, या ये कि सिचुएशन से ही भाग गया, रूम में कहीं और चला गया, हमारे घर में लोग आते हैं तो बच्चे के बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं. तो यू आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो बजाय इसके कि आप सिचुएशन को अवॉइड करें, आप बच्चे के साथ जाके बैठें, बच्चे के लेवल पे, राइट, उनके साथ. I prefer body contact, ठीक है, even if the child is beginning to get aggressive, touch winds them down a lot quicker than you talking to them. क्योंकि उस point के ऊपर ना words तो सुनाई नहीं पड़ रहे, तो words तो कम ही होने चाहिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी एनर्जी से आप उस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं को रेगुलेशन. और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि अब जिस तरह देखें कम्युनिकेशन की जब बात होती है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वोकल कम्युनिकेशन. रिमेंबर दैट. सो जो ये वोकल कम्युनिकेशन है ना, और आप जो वोकल कम्युनिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप कहते हैं कि आप किसी से फोन पे बात करें ना, तो हालांकि आप फोन पे बात कर रहे हैं, और आपकी कम्युनिकेशन को अगर कोई रेट करेगा तो वो 16% वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एंड द रेस्ट इज वोकल कम्युनिकेशन. वर्बल का मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं, और वोकल का मतलब है आप जिस तरह बोल रहे हैं. और ये इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप जो बतूल ने बताया ना, वो रेगुलेट योरसेल्फ है. क्योंकि जब मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट तो पहले आप अपने आप को काम करेंगे तो आप अपनी टोन को भी काम कर सकेंगे, ताकि आपको रेगुलेट करें अपने बच्चे को. दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज फनी बिकॉज मैं अपने बेटे के टैंट्रम्स तब ज्यादा आसानी से मैनेज कर लेती हूँ जब मेरी मदर वहां पे मौजूद होती है, बिकॉज वो मुझे रेगुलेट कर रही होती है. हाँ नहीं, we always do better in an audience, honestly speaking. और मैं ये इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि don't judge people what kind of mother they are in front of people, like because you are in front of an audience, तो आपको वैसे ही ख्याल होता है कि भाई 4 लोग देख रहे हैं, मैं आराम से बात करूँ. The pressure, हम लोग के ऊपर कितना प्रेशर होता है, और अगर हम लोग के ऊपर प्रेशर है तो हमारे बच्चे कितना प्रेशर फील कर रहे हैं, और वो तो ऑलरेडी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस पूरी सिचुएशन को डिकोड नहीं कर सकते, तो इट्स हार्डर फॉर देम. तो इसके अंदर थिंग्स एट वर्कड एंड दे सजेस्ट कि आप यूज करें, इसके आप कामिंग टर्मिनोलॉजी यूज करें. यू आर सेफ, इट्स ओके बेटा,
कोई मसला नहीं, सब ठीक है, आई एम हियर, मेक देम फील सेफ। अपनी आवाज के वॉल्यूम को बहुत ही नीचा धीमा करके रखें, जितना ऊंचा वो है उतने नीचे आप हो, एंड इन टाइम आप फील करेंगे कि वो सिचुएशन डी एस्केलेट होने लगी। कुछ लोग रॉक करते हैं बच्चों के साथ, कुछ हम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आपके बच्चे को किस चीज की जरूरत है, एंड डू दैट। इट्स वेरी इंटुइटिव, मगर यू सी कि इट विल वर्क। फिर द अदर थिंग इज कि हमारा आइडियल गोल जो हर पेरेंट का होता है वो ये है कि बच्चा सेल्फ रेगुलेट करे, लेकिन वो बड़ा आइडियल गोल है, यू नो, दैट इज लाइक दैट हैपेंस वे लेटर। पहले बच्चा को रेगुलेशन सीखता है, ठीक है, वो आपके थ्रू आपको मिरर करेगा, आपसे सीखेगा, फिर वो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, एट दैट टाइम बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस डेवलप हो गई है कि वो महसूस क्या कर रहा है, and he's able to express it either verbally or non-verbally, क्योंकि non-verbal बच्चे भी express कर सकते हैं through text, through sign language, through communicative devices। बिल्कुल आपने कहा it is way harder for non-verbal kids, मगर non-verbal kids को आपने communication का medium फिर भी देना है। तो अब ये again हमारे लिए एक separate topic हो जाएगा, which I do want to consider you know in the next live, Zainab, के ये बहुत सारे बिल्कुल parents, right? मैं बिल्कुल यही क्वेश्चन जो किसी ने पूछा ना कि हाउ टू प्रिपेयर नॉन वर्बल किड, मैं बिल्कुल आई वाज वेटिंग फॉर यू टू फिनिश के एक्चुअली देखिए स्ट्रैटेजी सबकी सेम है। मैं ये जिस तरह कह रही हूँ कि आपने आपकी 3 टाइप की कम्युनिकेशन है, तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फेवरेट चीजें, फेवरेट आप इमोशनल टूल किट जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें जैसे वॉक करना जाना या आपको कोई एनिमल्स या उसका जो भी उसकी फेवरेट चॉइस है या खाना कुछ, इवन इवन कई दफा रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर्स थे ना, फॉर एग्जांपल मैं खुद यूज करती हूँ। आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई फेवरेट फूड है और जिस भी लेवल का, अगर बच्चा पैक्स यूज कर रहा है जिस तरह बतूल ने जिक्र किया, या डिवाइस यूज कर रहा है, तो आप उसको तस्वीर दिखा सकते हैं। अगर उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी इतनी बेहतर है तो कि उसको समझ आ रही है, तो आप उसको रिमाइंडर, वर्बल रिमाइंडर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी ठीक है, हम ये वॉक पे जाएंगे और फिर हम जो है वापस आके पिज्जा खाएंगे या वापस आके बिरयानी खाएंगे, जो भी उनका फेवरेट फूड है। then they are excited and they know this is a step। for example कि अगर आप शादी पे जा रहे हैं और उधर बिरयानी मिलेगी तो आप ये एक्साइटमेंट हम you know this is like which is a part of a social story as well। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप बड़ी simplistically, आपको you don't really need all this in a proper manner। you can apply these techniques हर लेवल पे, छोटे स्मॉल स्केल में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हमने काफी डिस्कस किया है कि क्राउड गैदरिंग में बच्चों को लेके जाना, लेकिन क्राउड गैदरिंग में लेके जाना अगेन मेरे नजदीक एक अल्टीमेट गोल है। पहले आप बच्चे को घर से बाहर लेके जाएंगे, फिर आप उसको पार्क में लेके जाएंगे, फिर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मिलाएंगे जिसको आप एक हेड्स अप देंगे कि भाई आज मैं अपने बच्चे को आपके घर लेके आऊंगा, इफ इट्स ओके, यू नो, आप कोई इस किस्म की चीजें जो कि ग्लास की बनी हुई हों या वो हों उसको हटा दें। कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो ये नहीं कि वो माइंड करते हैं कि हमारे बच्चों का ये है, रहमदिल भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपने घर में तोड़ फोड़ तो कोई भी नहीं चाहता। आप उनको भी हेड्स अप दे दें ताकि आप भी कंफर्टेबल हो, राइट? ये उस दिन याद है हम लोग की डिस्कशन हो रही थी, तो ये बड़ा इट्स वेरी फनी। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक आप 4 फैमिलीज के साथ पिकनिक पे जाना पार्क में, और अपने बच्चे को पिकनिक पे अकेले पिकनिक पे लेके जाना पार्क में, दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। सो आप फर्स्ट हैंड ही ये कोशिश करेंगे कि एवरीबडी इज हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, तो चलिए आप अपने बेटे को भी लेके जाएं, 4 और फैमिलीज आ रही हैं। मैं खुद ये फील करती हूँ, कभी मैं खुद 1-on-1 टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। ये बतूल और हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, तो आई प्रेफर कि इफ आई वांट टू हैव द होल एक्सपीरियंस, आई प्रेफर कि मैं अकेली जाऊं, ताकि मैं आई विल बी देयर विद हिम एंड आई बी एबल टू गाइड हिम थ्रू, ताकि आप उसको जो है ये स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप वैसे अकेले खुद जाएं, एज अ फैमिली पिकनिक पे जाएं पार्क में बच्चे के साथ। दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू गो विद एवरीवन। सो इट्स लाइक बेबी स्टेप्स अगेन, राइट? और अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलाने ही लगे हैं, देखिए हमारे बच्चों को अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं पसंद, ठीक है ना? वैसे मैं समझूंगी कि हमें भी नहीं पसंद अगर हमारे साथ कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान घर पे आ जाते हैं तो हमें भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन वी आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैट, राइट? हमारे पास वो रिसोर्सेस
मौजूद हैं कि हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हम सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। तो इवन मैं तो तस्वीरें, मुझे पता है कि अगर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनके बच्चे हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप प्लीज तस्वीर भेज दीजिए, अपनी, एंड आई टॉक अबाउट इट कि हम इनके घर जाएंगे, हम इधर आधा घंटा रुकेंगे, चाय पी के आ जाएंगे, डिनर करके आ जाएंगे, एंड आई प्रिपेयर इन एडवांस। तो मुझे उससे पता है कि नाउ ही नोज एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट इट, और ही कैन जस्ट एक्सपेक्ट इट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इवन अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, वो महसूस तो फिर भी कर रहा है ना, तो आपने उसकी महसूसियात को केटर करना है, उनकी सेंसिटिविटी को केटर करना है, उनको कंफर्टेबल रखना है। तो लाइक यू सेड बेबी स्टेप्स, आई लव दैट आइडिया। पेरेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि जी हमें तो वेकेशन पे जाना है, हम कहीं और जा रहे हैं या मूव कर रहे हैं। ऑलवेज ट्राई एंड स्लो थिंग्स डाउन फॉर योर चिल्ड्रन। और इसमें ये भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है सोशलाइज करे, तो उसमें 2 स्टेप। फॉर एग्जांपल इफ आप ये भी चाहते हैं कि मैं किसी के घर जाऊं, किसी की पार्टी पे जाऊं और ये सोशलाइज उधर जाके करे, उससे बहुत अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो, बट उससे बेहतर है कि आप किसी को अपने घर बुलाएं। उस केस में उसने जो है वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं होना, वो ही इज ऑलरेडी, आपका बच्चा ऑलरेडी एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जिससे वो उसको आदत है उस जगह की, उसको अपनी चीज, और वो चाहेगा, जब दिल चाहेगा वो अपने कमरे में चला जाएगा या वो अपने आप को रिमूव करते। सो दिस वुड बी वेयर आप जब सोशलाइज का फर्स्ट स्टेप है। फिर इवेंचुअली वो डायरेक्टली, हमेशा याद रखें जब आप डायरेक्टली थ्रो वो खैर वो स्विमिंग का भी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बस गिरा दिया पानी में और वी लर्न हाउ टू स्विम, सो दिस इज नॉट द वे टू डू इट। मुझे सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर ज़ैनब मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि जी हमारा बच्चा काउच पे जंप करता है, जंप पे मारता है या बेड पे मारता है। माय फर्स्ट आंसर टू देम इज आपके घर में ट्रैम्पोलिन है, राइट? बिकॉज द थिंग इज कि आपको ये पता है कि आपके बच्चे को जंप करना पसंद है, वो ऑलरेडी सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम वो एक्साइटेड है, वो हाइपर है, उससे ये चीज वो एक्चुअली मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो रीडायरेक्ट देम टू समथिंग मोर फंक्शनल, जैसे कि एक ट्रैम्पोलिन। अपने लिविंग रूम में आप सोफे की जगह ट्रैम्पोलिन रखें, या आप एक वो जो स्प्रिंग वाला मैट्रेस है उसको होप छोड़ दें कि भाई बच्चे जंप नहीं करना इस पे, वो आपको पता है कि उस कमरे में वो जो है वो उसका है, और उसको, बिकॉज दिस इज सच अ नॉर्मल, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड रेगुलेशन स्ट्रेटजी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ रेगुलेशन। और ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि acceptable भी है सोसाइटी में. So it's like as a kid jumping on the trampoline is actually a play based activity, while he is वो जब regulate भी कर रहा है, वो enjoy भी कर रहा है, और odd one out भी है, तो I just सोफे से बेहतर है वो बेड पे जंप कर. एब्सोल्युटली। तो ये हमने बातें की हैं रेगुलेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, क्योंकि एंजाइटी से पहले हाइपर एक्टिविटी भी आती है और डिफरेंट ट्रांजिशंस को लेके भी एंजाइटी आती है। और ये आपने इमोशनल टूल किट वाली बात जो बताई थी ना ज़ैनब, आई नो मैं थोड़ा नीचे से शुरू कर रही हूँ, मगर ये हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं, लाइक व्हाट वर्क्स फॉर यू। आप लाइक विजुअल्स लेके चलती हैं अपने साथ, या आप लिस्ट लेके चलती हैं? बिकॉज हमारे किड्स आर लिटिल बिट ओल्डर, दे कैन रीड। व्हाट वर्क्स फॉर अस, और फिर न्यू पेरेंट्स के लिए क्या काम कर सकता है? अच्छा, इसमें ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमोशनल टूल किट है, अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो ये टोनी एटवुड जो है साइकोलॉजिस्ट है, और उनकी बुक भी है, हमारे पास समरी भी है पीडीएफ फॉर्म में. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पीएम बतूल को या मुझे, एंड हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे. उसमें इसकी काफी एक्सटेंसिव डिटेल है, इमोशनल टूल किट कैसे बनाना है. ऑब्वियसली हर एक का अपना होगा, लेकिन उसमें काफी सारे आइडियाज हैं. एंड आई डू वांट टू से कि ये मेरा और बतूल का, ये टोनी एटवुड इज द साइकोलॉजिस्ट हु केम अप विद दिस. सो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजीज. अच्छा, शुरू मेरे ख्याल में ये जो विजुअल रिमाइंडर्स होते हैं, या विजुअल हेल्प है, या पैक्स हैं, या इसी डिवाइस, इसमें फिर वही है, स्पेक्ट्रम है, बच्चा जिस लेवल पे है उसमें. लेकिन एक ऐसी चीज है कि आपको भी तस्वीरें देखना, अब तो इंस्टाग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ इट, राइट? Oh yeah. We like looking at pictures and we just want अच्छा कौन सा रेस्टोरेंट है, we don't want to read about it, we just want to look at the restaurant. अच्छा ये अच्छा लग रहा है, we want to go इस रेस्टोरेंट में आप जाए. तो जो है I mean कुछ, और ये एक ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है.
या अब जिस बच्चे को अगर आप चॉइस दें, जो कि इवन पीआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक पिवटल फैक्टर से माना जाता है, तो आप इमोशनल टूल किट के अंदर मल्टीपल चीजें रखें एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको बेटा तुम्हें ये चाहिए कि ये चाहिए, यू नो, बिकॉज उनकी डिफरेंट नीड्स हो सकती है, एंड इफ यू गिव देम द चॉइस दे फील यू नो मोर इम्पोर्टेंट एंड एक्चुअली दे डी-एस्केलेट फास्टर। हाँ बिल्कुल, और ये असल में मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आपके लिए रिमाइंडर है जिससे डायरेक्ट करना, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रही थी कि एनिमल्स का शौक है, तो मैं अगर उसके एनिमल के बारे में बात करना शुरू कर दूंगी, या एनिमल की जैसा कुछ बच्चों को पेंट का शौक होता है, आप उनको कहें ओ लेट्स फिनिश दिस देन वी आर गोइंग टू पेंट, या किसी का पेट है, या कोई जंपिंग है, स्विंग है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन हो, घर में अगर सिचुएशन हो, तो मैं तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है डू यू वांट टू गो ऑन द स्विंग, क्या आपने स्विंग करने जाना है, तो वो हमेशा आंसर जो है वो, तो इट्स लाइक ये नहीं है कि बच्चे को नहीं पता, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू आर गिविंग हिम दैट के ठीक है दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू। एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये, चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा थेरेपी में काम करते हैं, एकेडेमिकली तो आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मैथ्स करें अपने बच्चे के साथ और वो एंक्शियस हो रहा है, या वो इरिटेट हो रहा है, या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आप कहें कि अच्छा चलो जी तुम स्विंग पे चले जाओ। नो, देन ही शुड हैव अ रूटीन, और फिर आपको रिमाइंडर यूज करके उसको बताना है कि यू फिनिश दिस एंड देन यू कैन गो ऑन द स्विंग, एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर, आपके वो ऑलरेडी स्केड्यूल का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है। इसीलिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट, अगर आपने with a child who's anxious, क्योंकि अब जिस तरह आपको पता है कि ये फ्रस्ट्रेशन और एंक्शियसनेस तब ज्यादा होती है जब आपको कोई डिफिकल्ट टास्क होता है। So you have to understand. Going backwards, definitely I think emotional toolkit की एक हमारे पास वो भी है, एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं, वो भी हम लोग बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी की अपने बेटे की, जो मेरी इमोशनल टूल किट की, सो दैट्स एन एग्जांपल, आप अपनी उस तरह बना लें। लेकिन अच्छा, इसमें टूल के बारे में मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि मेरे पास काफी मल्टीपल जगहों पे घर में मैंने टूल किट्स रखी हुई हैं। गाड़ी में भी है, मेरे बेडरूम में मेरे सिरहाने पे है, क्योंकि मैं कभी कभी कॉल्स लेती हूँ। यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग फोन पे होते हैं तो हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही चीजों में एक्ट आउट कर रहे होते हैं, या उनकी वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं। तो आपके पास एक टूल किट हमेशा मौजूद होनी चाहिए। आप हर वक्त कैरी तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, तो आप घर में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उन चीजों को रखें, ताकि आप अपने बच्चे को हर वक्त रेगुलेटेड रखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली हर वक्त तो बच्चा रेगुलेटेड नहीं रहेगा, और बच्चा तो नहीं हुआ, लेकिन यू विल एटलीस्ट हैव अ मोर रेगुलेटेड चाइल्ड इफ यू कीप डिफरेंट थिंग्स अराउंड द हाउस। ठीक है ना? अब जैसे कि मेरे बेटे का एक डेजिग्नेटेड एरिया है, लेकिन वो हमेशा तो उस एरिया में नहीं होता। तो फिर जब वो उस एरिया में नहीं होता, तो तब वो ही इज नॉट रेगुलेटेड, वो फिर सोफे पे बाउंस कर रहा है, वो बिस्तर में उछल रहा है, वो डिफरेंट चीजें कर रहा है। तो मैं एक साथ अपने ही लाइक्स टू स्क्रिबल एंड ड्रॉ, तो एक स्केच बुक और कुछ मार्कर्स मेरे सिरहाने पे हमेशा होता है दैट आई कीप देयर। अगर वो मैंने नहीं रखा तो वो मेरी ही किताबों के ऊपर डूडल करना शुरू कर देगा, और मेरे पास काफी सारी किताबें तो देन आई एम प्रोएक्टिवली थिंकिंग कि अच्छा मुझे इस चीज को कैसे अवॉइड करना है। तो टूल किट आप बहुत ना जैसे मैं कहती हूँ फ्लेक्सिबल रखें। एक कुछ वो टूल किट नहीं होगी कि कोई बॉक्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हों। अगर आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, आपको पता है कि उस टाइम के ऊपर आपके बच्चे ने स्क्रिप्टिंग, हमिंग, स्टिमिंग शुरू कर देनी है, तो आप कुछ अपने साथ एक्टिविटीज रखें। बीडिंग, वीविंग बहुत कामिंग होती है हमारे बच्चों के लिए। वाटर कलर पेंट्स के साथ, इवन हाथों के साथ सेंसरी प्ले। I actually want to talk about sensory play as well, but we'll talk about that maybe in the next time. And slime, Play-Doh, and all these things are actually activating the right side of your brain. So they're supposed to calm you down. काइनेटिक सैंड बड़े मजे की, मेरे बेटे का फेवरेट काइनेटिक सैंड है आजकल, और वाटर बीड्स है जिस तरह। और ये भी है कि अगर आपको लगता है कि ये एक सेंसरी टॉय है या फिजिट टॉय है, या ये बाकियों को बड़ा हेल्प कर रहा है, और आप कहते हैं कि ओहो आप इसको नहीं पसंद, ये अंडरस्टैंड करें कि हर बंदे का सेंसरी प्रोफाइल डिफरेंट है। So it may be something that work for another child will not work for you. Absolutely. इसमें आई थिंक हम लोगों ने इसको ये सबको डिस्कस ओवरऑल कर लिया है, एंड आई रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड। हम लोग वो बोलते जा रहे हैं मेरे ख्याल में, लेकिन इसमें सिर्फ द ओनली थिंग आई थिंक इज द आइडेंटिफाइड ट्रिगर्स। एज अ पेरेंट अपने
इनको एक्नॉलेज करें, और you should know कि what is going to happen, because आपको cues मिलते हैं, आप warning signs को देखें। और इसलिए ये जरूरी है क्योंकि वो कहते हैं there's no learning in the process, you get it, like जब एक situation develop हो गई है ना, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। prepare ahead, पहले आप informed decision लें कि भाई जिस तरह अगर आपको ऑलरेडी पता है कि 4 ट्रिगर्स होंगे, अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके लिए अपने आप को एक्नॉलेज करना, एजुकेट करना, प्रिपेयर करना एज अ पेरेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, और आपके बच्चे की भी जिंदगी उससे उससे आसान हो जाएगी। और फिर प्रॉब्लम ऑब्वियसली यू वुड नो व्हिच इज अ प्रॉब्लम, यू कैन थिंक ऑफ आइडियाज कि भाई अगर ये हो गया तो मैं इसको इस तरह डील करूंगी, अगर ये हो गया तो उस तरह डील करूंगी। सो ये बड़ा मैं ये एक बात इंटरजेक्ट करके कहना चाहूंगी ज़ैनब के ना, एंड ऑब्वियसली मैं हर किस्म की थेरेपी की जो हूँ वो बहुत बड़ी फैन हूँ। आई थिंक हमारे बच्चों को जिस हद तक हम मदद दे सकें इट्स गुड, लेकिन मैं पेरेंट की बात कर रही हूँ, अभी थेरेपिस्ट की ऐसे बात नहीं कर रही। पेरेंट कभी कभी थेरेपिस्ट से वो चीजें भी सीख लेते हैं जो कि नॉट नेसेसरीली हमारे बच्चों को उस टाइम पे हेल्प कर रही होती हैं। जैसे कि ये चीज है ना कि अगर आपने एक दफा एक डिमांड या एक टास्क कह दी है तो अब आपने उसको कंप्लीट कर कर ही छोड़ना है, राइट? अब बच्चा एंग्शियस है, एंजाइटी दिखा रहा है, मेल्ट डाउन कर रहा है, मगर पेरेंट लगा हुआ है कि जी मैंने तो ये काम कराना है क्योंकि मुझे थेरेपिस्ट ने यही बताया। तो आई वांट योर इनपुट ऑन दिस ज़ैनब। इनफैक्ट मुझे आपकी मदद की जरूरत है कि लाइक वी नीड टू मेक आवर कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स को, मुआशरे को ये अंडरस्टैंडिंग देने की जरूरत है कि बच्चा उस वक्त नॉटी नहीं हो रहा, वो आपके साथ जिद नहीं कर रहा, वो एक ट्रांजिशन में है, एक मोमेंट में है, और उसको आपकी हेल्प की जरूरत है, ना कि आपकी सख्ती की, ना कि आपकी ओ आई विल बी कंटिंजेंट विद माय डिमांड। ये कंटिंजेंसी का कोई मोल नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट यू शुड बी थिंकिंग। ये तो आई थिंक बायोमेडिकल अप्रोच की बेसिस ही इस पे बेस्ड है कि जिस तरह वो पहले मैंने कहा कि आवर माइंड्स विल नॉट बी काम इफ आवर बॉडीज आर नॉट काम। सबसे पहले इट्स मुझे कभी इतना पेनफुल लगता है, स्पेशली लिमिटेड स्पीच के बच्चों के साथ, नॉन वर्बल बच्चों के साथ, सिवियर बच्चों के, क्योंकि देखें अगर एक वो जो हमने कुर्सी की एग्जांपल दी, या जिस तरह टैक्टाइल डिसफंक्शन होता है सेंसरी प्रोसेसिंग में, एक बच्चा है उसको जो कपड़े पहने हुए हैं वो अनकंफर्टेबल है, आपने उसको कुर्सी पे बिठा दिया और आप उसको कुछ भी सिखा रहे हैं, डज नॉट मैटर वो उसका नाम है या लेटर्स हैं या मैथ्स है, इट्स लाइक कि आप you're itchy and you don't let them itch, कि भाई no you don't let them scratch, it's like this। ये ऐसे है कि जैसे एक सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही हो ना, और आपको कुछ लेक्चर अटेंड करना पड़े और आपको कुछ लर्निंग हो, तो आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकते। इसीलिए हम लोग मेडिकल इश्यूज को पहले एड्रेस करना चाहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से इश्यूज बिहेवियरल इश्यूज हैं और कौन से इश्यूज जो हैं मेडिकल इश्यूज हैं। इसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है, और ताकि उसके बाद आपको लगे कि बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस करने का दूसरा तरीका है और मेडिकल इश्यूज को एड्रेस करने का दूसरा तरीका है। एंड दैट इज व्हाई बतूलों में जब भी बात करते हैं, व्हाई इन दिस ग्रुप यू विल सी कि हम करेंगे, हम स्ट्रेटजीज की भी बात कर रहे हैं और फिर हम सप्लीमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, हम रेमेडीज की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑल इन ऑल एक दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच। तो आपने हर चीज को एड्रेस करना है और इन कॉम्बिनेशन यू विल फाइंड सक्सेस। एक तरह से कि आप सोचें कि भाई कुछ स्ट्रेटजीज ही ऐसी हैं कि आप किसी को उससे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू हैव, और एज अ पेरेंट, एज एन ऑटिज्म मॉम, आई फील लाइक कि मुझे यस आई विल डू एवरीथिंग जो भी आपके बच्चे को हेल्प करेगा। आपको हर चीज को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए, और व्हाई नॉट। और जहां तक टूल्स की बात आती है, सो दीज आर एप्लीकेबल नॉन वर्बल बच्चों के लिए भी बहुत काम आएंगे, और अगर आपका बच्चा न्यू टू ऑटिज्म है या आप न्यू टू ऑटिज्म हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। आई थिंक जो वन थिंग है जो मैं पेरेंट्स को टाइम एंड टाइम अगेन समझाने की कोशिश करती हूँ, ये कि हमारे बच्चों के लिए लैंग्वेज और लैंग्वेज की कॉम्प्रहेंशन, यानी कि लैंग्वेज बोलना और फिर आपके बोले हुए जुमलों को समझना, दोनों ही मुश्किल है। तो आप उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी आसान बनाइए बाय यूजिंग विजुअल्स, ठीक है ना? विजुअल्स यूज करें, ये ना सोचें कि जी मैंने विजुअल यूज कर लिया तो बच्चा बोलेगा, नहीं, आप टेक्स्ट भी यूज करें, आप विजुअल्स भी यूज करें।
विजुअल्स तो ज़्यादा यूज़ करें, बाथरूम में भी होना चाहिए, बाथ टब के साथ भी होना चाहिए, बेडरूम में होना चाहिए। मैंने अपनी बच्चे की अयान की पूरी अलमारी के ऊपर विजुअल्स लगाए हुए थे कि बेटा इस दराज के अंदर पैंट्स हैं, इधर सॉक्स हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे लर्न। हमारे बच्चे ज़हीन हैं, उनके पास स्किल्स हैं, बस उनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए होता है। वी नीड टू गिव देम दैट। तो इधर मैंने टूल्स लिखे हुए हैं जो कि ज़्यादातर फैमिलीज के लिए हेल्पफुल होंगे। जोन्स ऑफ रेगुलेशन के ऊपर मैंने एक पोस्ट की हुई थी, आपको चाहिए कि आप अपने ओटी से इस बारे में बात करें। जोन्स ऑफ रेगुलेशन का एक पूरा करिकुलम होता है, वो एक पूरा कोर्स है अपने आप में। ज़्यादातर ओटीज इसमें ट्रेंड हैं और वो आपके बच्चे के साथ, चाहे वो वर्बल हो कि वो नॉन वर्बल हो, इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं इन आइडेंटिफाइंग कि बच्चा इन दैट मोमेंट इन टाइम कौन सी जोन में है। इट्स अ वेरी सिंपल कलर कोडेड प्रोग्राम। रेड मायने आप ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, गुस्से में हैं। ब्लू मायने आप टायर्ड हैं, सिक हैं। येलो का मतलब आप एक्साइटेड हैं। और ग्रीन का मतलब कि आप यू वांट टू बी इन द ग्रीन जोन। ग्रीन मतलब गुड, राइट? तो वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, कलरिंग की, स्टिकर्स, कटिंग, ग्लू पेस्टिंग, और उससे बच्चे को डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अच्छा इन कलर्स के साथ ये इमोशन जाता है। और जब वो उस इमोशनल मेल्ट डाउन में होते हैं तो आप उनको ये बता भी सकते हैं कि ओह मुझे लग रहा है कि तुम तुम रेड येलो जोन में हो और तुम रेड जोन की तरफ जा रहे हो। आई मीन दिस मे साउंड फनी बोलने में, लेकिन इट वर्क्स। और पेरेंट के लिए भी इट ऑल्सो वर्क्स। मुझे पता है कि अगर अयान रेड जोन में पहुंच गया है तो अब तो कुछ और ही आई हैव टू राइड द स्टॉर्म, यानी कि वो आई जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, राइट? बी पेशेंट एंड जस्ट वेट फॉर इट टू। मेरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उनको येलो स्टेज के ऊपर कैच करूं, राइट? जब वो दिखा रहे हैं कि वो वर्कड अप हो रहे हैं, ट्रिगर्ड हो रहे हैं, तो मैं वहां कैच करूं। तो दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी एंड आई रियली थिंक कि आप लोगों को इसमें अपने थेरेपिस्ट को यूटिलाइज करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए भी यूटिलाइज करना चाहिए, टेबल टाइम और उन चीज़ों के अलावा। इसके अलावा कैलेंडर एंड डेली प्लानर। आई एम सरप्राइज टू सी कि इधर कितनी ज़्यादा फैमिलीज हैं जिन्होंने उनके बच्चों का एक डेली प्लानर नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो कि आपसे आके ये नहीं पूछ सकता कि जी अभी इसके बाद क्या होगा, या शाम में हम कहाँ जा रहे हैं, या घर पे कौन आ रहा है। एंड वी नो कि हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के बाद वो थेरेपीज पे भी जाते हैं। तो एक विजुअल स्केड्यूल होना जो कि डेली प्लानर हो, कैलेंडर हो, इज सो इम्पोर्टेंट। और उधर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि जी फ्राइडे को डॉक्टर की विजिट है, या ये कि नेक्स्ट वीक आपकी कोई प्ले डेट होगी, राइट? एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट। सिर्फ उठा के रख नहीं देना है दीवार के ऊपर, यू हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट इट। Zainab, have you used calendars or daily planners? एक्चुअली ये बिल्कुल सो नाउ चूंकि मेरा बेटा 11 साल का है तो हम लोग थोड़ा सा आगे आगे हैं, लेकिन हम वर्बली बहुत ज्यादा रिमाइंडर्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल, हालांकि मुझे आंसर का पता है, मुझे पता है उसको भी आंसर का पता है, लेकिन मैं उसको सुबह रिमाइंड करूंगी कि आज मैं आपको जल्दी स्कूल से पिक कर लूंगी। क्यों जल्दी स्कूल से पिक कर लूंगी? बिकॉज जनीन ने आना है, वो उसकी स्पीच थेरेपिस्ट है, शी विल कम, एंड देन व्हेन आई पिक हिम अप एंड आई से अच्छा हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, फिर जनीन, सो यू नो उसको जो है वो बिकॉज हम लोग जो है वो कन्वर्सेशन पे वर्क करें, एंड आई वांट अ टू वे कन्वर्सेशन। सो उसका बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्योंकि इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है बच्चे की, कि आप उसको वो क्वेश्चन पूछें जिसका आपको पता है कि उसको आंसर आते हैं। सो जिसमें वो कंफर्ट जोन में डेवलप, एक दफा कंफर्ट जोन डेवलप हो जाएगा, फिर देन यू कैन पुट इन अ क्वेश्चन जो कि आप इज अ रियल क्वेश्चन कि भाई स्कूल में आपका कैसा दिन रहा। और ये बड़ा मुश्किल आंसर है, ये तो खैर दूसरे बच्चों से भी, ये तो ये तो न्यूरोटिपिकल बच्चों से आंसर लेना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, या न्यूरोटिपिकल बच्चे भी कहाँ आंसर देते हैं इस बात का। एब्सोल्युटली। और मैं एक्चुअली एक और बात इसमें देखें, ये जब भी हम बात करें तो मैं अपने इट्स समथिंग जो मैं अपने आप को भी रिमाइंड करें, सी फीलिंग्स आर ओके, एक्शंस आर दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड, चेंज्ड, जो भी आप वर्ड यूज करें कि कैसा वो फील कर रहा है वो उसका राइट भी है, वो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। ये एक्शन इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सो इसमें हम इसीलिए स्ट्रैटेजीज हैं, आप इरेडिकेट नहीं कर सकते कि भाई एंग्शियस हो ही ना। इसी तरह जो भी फील वो कर रहा है, ये कहना कि भाई इसको पता नहीं डर किस बात का, इधर आओ चलो ये करें, यू नो, नो, हाउ ही फील्स इज हाउ ही फील्स, बस वो है। तो हाइट का
ऑब्वियसली हर बंदे की डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, तो एग्जाम्पल मैं दूं ना, जैनब के बेटे को हॉर्स राइडिंग पसंद है और मुझे भी बड़ा शौक है कि मैं अपने बेटे को हॉर्स राइडिंग पे लेके जाऊं, लेकिन मैंने अपने बेटे से जिक्र किया तो फौरन उसने मना कर दिया। मैंने जैनब से कहा, मैंने कि यार क्या घोड़ों से कौन डरता है, यू नो, लाइक हॉर्स राइडिंग पे क्यों नहीं जाना? एंड जैनब वाज लाइक रियली अ ह्यूज हेल्प फॉर मी व्हेन शी सेड कि देखो इट टेक्स टाइम, राइट? एंड जैनब यू मैनेज दैट डिफरेंटली विद आहिल ना, आपने स्लोली स्लोली बेबी स्टेप्स लेके, जैसे आपने बोला आपने उस सिचुएशन को और इसमें और ये हॉर्स राइडिंग बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ये जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत से, अब देखें उसमें बहुत सारे को फैक्टर्स होते हैं। हाल ही अगर कहना, क्योंकि हम लोग को इतनी आदत हो गई है कि कोई टैबलेट ले लें या कोई साइकोलॉजिस्ट ही बैठ के या कोई स्पीच थेरेपिस्ट है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, हम लोग की एक तो स्टार्टिंग में ये बहुत, मैं बिकॉज आई वेंट थ्रू दैट कि आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा वो मैजिक पोशन क्या उधर जादू करेगी और वो बोलेगी और ये होगा, तो और बड़े आप डिसअपॉइंट होते हैं जब आप देखते हैं कि भाई एक तो परसिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली। एंड आई थिंक दे से दैट ये 21 डेज है और 7 डेज है, कहते हैं कि आप एक चीज को अगर इफ यू वांट टू डेवलप अ हैबिट यू हैव टू डू इट फॉर 21 डेज स्ट्रेट। सो इसलिए और ये मैं इसलिए इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि जिस तरह मेरे बेटे को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और उसको एनिमल्स का भी बहुत शौक है, लेकिन वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसको, जिसका मतलब ये है कि आपको पता है हमारी 7 सेंसेस हैं, जिसमें जो विजन है, सेंस ऑफ स्मेल है, टैक्टाइल है, एक मूवमेंट वाली होती है जो, सो ये सारी इन्वॉल्व होती हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। जिस तरह मूवमेंट वाली वेस्टिब्यूलर कहते हैं उसको, एक बॉडी पोजीशन वाली प्रोप्राइसेप्शन सेंस है। अब उसको जो टच वाली टैक्टाइल सेंस है ना उसकी, उसके लिए ना उसको ही इज ऑलवेज उसको घोड़े पे बैठना, हॉर्स राइडिंग पसंद है बिकॉज वो रिदमिक मूवमेंट होती है, दैट वर्क्स ऑन योर कोर एक्चुअली। लेकिन उसको घोड़े को पैट करना और वो ज्यादा उसको होता है, अच्छा मैं सीधा घोड़े के ऊपर बैठूं और बस मैं वो अपना टाइम एंजॉय करूं। सो ग्रेजुअली वी वर्कड ऑन कि नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट हॉर्स राइडिंग, दिस इज ही इज एंजॉयिंग इट, एंड मैं उसको लेके जाती रही लेकिन ग्रेजुअली हमने उसको ब्रश करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे वो आया कि वो ही कैन एक्चुअली, सो दिस इज लाइक नॉट asking कि भाई जाओ और सीधा ही करो, तो baby steps and small way and understanding and acknowledging that कि जो of understanding कि ये जो इसके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसको ये नहीं कि, वरना अगर आप सोचें तो आपके ओ वो तो घोड़े को हाथ ही नहीं लगाता, इसने कहाँ एंजॉय करना है, इसको नहीं पसंद घोड़े, you get it? But so, see how much he enjoys. वो horse riding पे regularly जाते हैं ज़ैनब के बेटे, और eventually वो you know animals को touch भी करने के लिए राजी हो सकते हैं। तो ज़ैनब इसके अंदर में एक चीज आपने कोर की मेंशन की, तो आई वांट टू कमेंट ऑन दैट। अगर आप अपने बच्चे के कोर पे काम करें विद योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो यू विल नोटिस कि आप, ज़ैनब आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई, शी विल बी बैक इन अ मिनट, तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे के कोर पे काम कर रहे हैं तो बच्चा ज्यादा रेगुलेट होगा ब्रेन वाइज, उसकी ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन विल बी डन मच बेटर। तो ये चीज भी आप याद रखिए कि आप अपने थेरेपिस्ट के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ड्यूरिंग ओटी, ड्यूरिंग फिजियो आप कोर के ऊपर काम करें। उसके लिए आप ब्रिजेस यूज कर सकते हैं, यू नो आप प्लैंक्स कर सकते हैं, जितना आपका बच्चा अलाउ कर सकता है। व्हील बैरोज आर अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू, और जैसे कि ये कोर की एक्सरसाइजेस, जो एक्टिविटीज होती हैं, साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, यू नो स्कूटर्स होती हैं, तो आप ये चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। वी आर गेटिंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर। Zainab, let's take a look at this one. We are hearing from a parent, my son started getting afraid of everything these days, loud noises, some characters in the cartoon or anything, and he starts to cry. Sound sensitivity. Yeah, absolutely, sound sensitivity। और जैसे कि हमने already discuss किया कि हम baby steps लेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि तमाम तरह sound को खत्म कर देंगे, लेकिन we will help them regulate by doing small things, taking baby steps and making sure कि अगर वो loud noises से uncomfortable हैं तो we will not obviously expose them to loud noises। ये कि कभी कुकिंग के अंदर आज के दिन तक भी, हालांकि अब मेरे बेटे को नॉइज सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन अगर कुकिंग के दौरान मुझे ब्लेंडर यूज करना है या मुझे घर में वैक्यूम करना है, मैं हमेशा एक हेड्स अप देती हूँ कि अयान
मैं वैक्यूम करने लगी हूँ, you know, if it's going to bother you, आप रूम में चले जाएं, या मैं आपको हेडफोन्स दे दूं so it doesn't bother you. So you just like learn to manage it with them. अच्छा, ये इसमें मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर, जो एक ये वाला क्वेश्चन और जो दूसरा वाला है कि वो सोशल एंजाइटी है उसको, वो अपने भाई को भी ही डजंट वांट टू, माय सन हेट्स हिज ब्रो एंड सिंस 1 year, और वो आपस में मैनेज नहीं कर सकते और सब. अच्छा, ये एग्जैक्टली वो, अब जिस तरह हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में टाइम ले लिया, हम घंटे से स्ट्रेटजीज पे काम करें, लेकिन यहाँ पे वो वाला दूसरा पार्ट प्लग इन होता है. वो पार्ट है रेमेडीज का, वो पार्ट है सप्लीमेंटेशन का, वो पार्ट है कि आपके अगर आप उसको एड्रेस करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द टाइमिंग द क्विक स्ट्रेटजी इज कि अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको कहीं लेके जाना है और वो साउंड सेंसिटिव है, तो क्विक स्ट्रेटजी इज कि आप उसको हेडफोन्स पहनाएं या आप किसी तरह उसको, या ना मतलब, लेकिन एट द मीन टाइम यू हैव टू एड्रेस अंडरलाइन इश्यू, underlying conditions, अंडरलाइन कंडीशन कि ये हो क्यों रहा है. और जब आप उसको, सो व्हाइल यू आर एड्रेसिंग, जब आप उस पे काम कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग दीज स्ट्रेटजीज आर व्हाट विल हेल्प यू. एंड देन इन द मीन टाइम अगर आप उस पे, ओह ये तो होम्योपैथिक वाली स्लाइड आ गई. आप डिस्कस ही कर रही थी अंडरलाइन कंडीशंस का, तो मैंने कहा अंडरलाइन कंडीशन की ये हल. अच्छा, इसमें सबसे वो मैं अपना एक्सपीरियंस, आई थिंक ये वैसे तो बतूल का डोमेन है, बट बिकॉज इसमें हम लोग अंडरलाइन कंडीशन की बात कर रहे थे, तो जो साउंड सेंसिटिविटी, एंड क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आया साउंड सेंसिटिविटी का, तो ये साउंड सेंसिटिविटी जो है ना एड्रीनल फैटीग से रिलेटेड होती है. तो अगर आप उसको एड्रेस करें किसी भी प्रैक्टिशनर से, व्हाटएवर प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस, इफ इट्स बतूल और समबडी एल्स, हूएवर, तो जो है उसमें एड्रीनल फैटीग को अगर आप एड्रेस करें तो साउंड सेंसिटिविटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है. सो दैट्स समथिंग. इसके अंदर एग्जैक्टली मैं अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि एड्रीनल ग्लैंड तब स्ट्रेस आउट होता है जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो चुका होता है. आपके कोर्टिजोल लेवल्स, जो कि एक नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन है जो बॉडी रिलीज करती है, उसका ओवरलोड हो जाता है. तो एड्रीनल ग्लैंड स्टार्ट्स टू बर्न आउट, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड वो कोर्टिजोल मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. तो अगर आपके बच्चे आपको दिखा रहे हैं कि जी वो साउंड सेंसिटिविटी डेवलप कर रहे हैं और पहले शायद नहीं थी या मामूली थी, अब ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उनके स्ट्रेस लेवल्स इंटरनली भी बढ़े हैं, जो वो बाहर सिम्टोमेटिकली ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं. तो कंप्लीटली एग्री विद दैट, एड्रीनल ग्लैंड की सपोर्ट की जरूरत हो सकती है. बिल्कुल, और देयर रियली गुड सपोर्ट आउट देयर. मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, मेरे अपने बेटे के साथ एक टाइम था वो, और ये हर एक का डिफरेंट होता है, साउंड सेंसिटिविटी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. आई एम नॉट रियली गुड एट इट, लेकिन बाकी कुछ इसलिए कभी वो होता था कि वैसे गाने सुनता रहता है, ये गाना नहीं उसको पसंद, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और पिच का फर्क होता है. आई थिंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ये काफी डिफरेंस होता है. मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं, मुझे पता है कि ये फर्क होता है, और इसलिए बच्चे जो है वो सिलेक्टेड चीजों से इरिटेट होते हैं. कुछ बच्चे जो हैं वो छोटे बेबी के रोने की, क्योंकि बच्चों की जो छोटे बेबीज होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, रोने की पिच जो है वो डिफरेंट होती है. तो वो सिर्फ उससे नहीं, उसको बड़े रो रहे हो या कुछ इस तरह हो, लाउड नॉइजेस से किसी से उसको फर्क नहीं पड़ता. वो जो छोटा बच्चा रो रहा हो ना, he can't take this. मेरी अपनी हम लोग करते हैं, बिल्कुल. So I know a mom, she actually had this child. So it's like, this is why customization, individualized, बड़ा important है plan. अच्छा, ये homeopathic, there are really good remedies. अब again मुझे थोड़ा सा हमेशा I keep repeating myself, लेकिन ये बड़ा important understand करना कि homeopathy does not work like the other forms of medication. एक रेमेडी हर बंदे के लिए नहीं होती. एक सिम्टम को एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता. अगर मेरे सर में दर्द है और आपके सर में दर्द है, दोनों का की एक दवाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. So ये भी, इससे पहले कि आप रेमेडीज में जाएं, पहले फर्क तो बताएं हमें कि ये होम्योपैथी है और फिर बायोमेडिसिन है, दोनों में पहले तो आप ऐसे बताएं उन लोगों के लिए जो कि शायद नहीं दोनों फील्ड से फेमिलियर हैं, कि दोनों में फर्क क्या है. Because I mean, we know कि एक एनर्जी मेडिसिन है और एक जो है वो सप्लीमेंटेशन बेस्ड है, मगर आपके नजरिए से दोनों में फर्क क्या है और कब कहाँ कैसे फैमिलीज को क्या सिलेक्ट करना चाहिए. अब ये देखिए एग्जैक्टली ये मोड ऑफ ट्रांसफरेंस है ना. आई मीन इट्स लाइक दिस. जैसा मेरी फेवरेट इसका एग्जांपल ये है कैमोमाइल.
अब ये आपको पाउडर भी आप बच्चों का खरीदे ना, पहले जब वो होता था, अब तो खैर परफ्यूम इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन वो या वैसे तो आपको कहते हैं कैमोमाइल क्रीम है, कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल है, कैमोमाइल टी है, कैमोमीला इज एक्चुअली अ रेमेडी जो होम्योपैथिक रेमेडी है। सो एक्चुअल में ये सारी रेमेडीज भी हर्ब से बनी। सो इट्स लाइक द मोड ऑफ ट्रांसफर, विच वन इज इजियर फॉर यू, आपके लाइफस्टाइल को कौन सी चीज सूट करती है। और मैं हमेशा, ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि आप बायोमेड के साथ साथ होम्योपैथिक रेमेडीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं तो खुद एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती हूँ, अनलेस कि आप एक ही चीज को डिफरेंट वे से एड्रेस भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिशनर। अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल पैरासाइट का प्रॉब्लम है, या हैवी मेटल डिटॉक्स है, या लिवर इशू है, या एड्रीनल फटीग है, तो मैं अगर एक सप्लीमेंट दे रही हूँ तो मैं एक होम्योपैथिक रेमेडी भी क्यों ना दूं। क्योंकि मैंने इतने सारे मैप्स डॉक्टर के साथ, जब हम लोगों ने लाइक आई वर्क फॉर माय सन, कितने ज्यादा, और वो सब ये कहते थे कि हम लोग एक इशू को हर तरह से एड्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग दोनों स्ट्रेटजीज की बात करें। जब हमने एंजाइटी को किया तो वी आर गोइंग टू कवर सप्लीमेंट्स, वी आर गोइंग टू कवर द होम्योपैथिक रेमेडीज, एंड वी आर गोइंग टू कवर द स्ट्रेटजीज। मींस कि आप जो वेटेड ब्लैंकेट, आप होम्योपैथिक की ये दवाई खाएं, और आप जो है वो साथ में थोड़ा सुबह आपने एक सप्लीमेंट लिया, या आप सीबीडी ऑयल भी लें, और रात और एक ब्लैंकेट, एक वेटेड ब्लैंकेट में लेट, और फिर भी आपको एंजाइटी हो तो फिर या फिर क्या करें ज़ैनब? लेकिन फिर आप वेट करें, फिर आप पेशेंस दिखाएं, जो कि बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ प्रोसेस, दिस नॉट मैजिक, वी वांट इट टू बी, आई नो दैट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, कि हम चाहते जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। आप ज़ैनब, ये कौन सी आपके नजरिए से बेहतरीन है एंजाइटी के लिए? बिकॉज मैं अच्छा, देखती इसमें मैं थोड़ा, इसमें सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, ये दीज आर कपल ऑफ लिस्ट ऑफ, अगर एंजाइटी की टॉप 6 रेमेडीज जो हैं होम्योपैथी में ये हैं, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन इस तरह करना चाहूंगी कि जिस तरह लाइकोपोडियम है, मैंने लाइकोपोडियम सबसे पहले इसलिए रखी है, हालांकि अगर आप किसी होम्योपैथ से कहेंगे ना कि एंजाइटी की मेडिकेशन दे, तो कभी भी रेमेडी आपको लाइकोपोडियम सजेस्ट नहीं करेगा, अनलेस आप एक होम्योपैथ को जाएं और कंसल्ट करें और अपना सारी एक्सप्लेन करें, देन ही माइट एक्चुअली से। क्यों? क्योंकि लाइकोपोडियम जो है वो उन बच्चों की, उन एडल्ट्स की या रेमेडी है एंजाइटी के लिए जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जिनकी एंजाइटी बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव इश्यूज है, देन लाइकोपोडियम विल हेल्प देम। बट इन जनरल ओवरऑल जेलसीमियम एंड एग्नेशिया इज एक्चुअली माय फेवरेट। और जिस तरह वो ओवर सेंसिटिव, जिस तरह ये साउंड सेंसिटिव है, या कुछ बच्चे जो है उदास रहते हैं, बिल्कुल बुझे बुझे से होते हैं, उनके लिए फॉस्फोरस इज एक्चुअली अ वेरी गुड रेमेडी। इग्नेशिया जो है वो, अच्छा ये जो मेरे ख्याल में बतूल, आई डोंट नो, आपसे बात हो रही थी किसी और से हम लोग, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं फेवरेट टॉय है उनके बच्चे का, एंड वो गुम गया और अब समझ नहीं आ रही, या बुक थी। और ये बड़ा कॉमन है क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा वो अटैच हो जाते हैं, और वो उसी ब्लैंकेट के साथ, और फिर जब आप ट्रेवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और ब्लैंकेट गुम गए और वो बच्चा एंग्शियस है, अब उसको नींद ही नहीं आ रही, अब वो इतना डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू अ लॉस। It's nice. So Ignatia is the medication anxiety के लिए. Ignatia would really help a child like that to actually calm him down and anxious, वो जो उसकी anxiety को control करने के लिए Ignatia जो है बहुत अच्छी है. और last में सिर्फ ये Gelsemium, because I don't want to, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ कि how every remedy is for different scenarios. Matched to the symptom. तो मगर एक चीज है ज़ैनब, तो इग्नेशिया के लिए आप कहेंगी कि लाइक जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी ऑलमोस्ट हो गई ना, क्योंकि वो या तो जगह आपसे छूट गई है या कोई नहीं, इग्नेशिया एक्चुअली लॉस के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता किसी का बिगर लॉस भी होता है, और ये एक ऐसी चीज है जिस तरह हम लोगों को 2-3 क्वेश्चंस भी आए ना कि क्वेश्चंस आए ना कि नॉन वर्बल, अब ये वो वाली चीज है, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, कोई ग्रैंड पेरेंट है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा उससे अटैच था, एक बच्चा नॉन वर्बल भी है,
अब आपको पता है कि ये सब चीजें हैं, इवन वो शो नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो रो भी नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि वो बच्चा इस वक्त जो है एक लॉस से, एक इस प्रोसेस से गुजर रहा है. इग्नेशिया वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट नो मैटर व्हाट बायोमेड ट्रीटमेंट यू आर डूइंग. ये भी इंपॉर्टेंट है. आप जिस मर्जी को एड्रेस कर रहे हो, आप जो मर्जी कर रहे हो, आप जो मर्जी ऑटिज्म में कहाँ पे हैं, बट अगर ये एक ऐसा सिनेरियो दिस वुड बी सच अ गुड फिट कि आपके वो जो 3-4 दिन है या हफ्ते हैं वो बिल्कुल डिजास्टर से बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, और उस आपकी भी और आपके बच्चे की भी जिंदगी आसान हो जाएगी. इसी तरह जो जलसीमियम है, एक सवाल और पूछूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से, क्योंकि अयान के ऑब्वियसली ट्रांजिशन इश्यूज रहे हैं, तो आई कैन रिलेट विद अदर पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं वो अटैच हो जाते हैं चीजों के साथ. तो हमारा एक सुपर हीरो का बैकपैक है जिसकी जिप टूट गई, और अब वो बैकपैक जो है वो यूज हम नहीं कर सकते, और अयान इज वेरी अटैच्ड टू इट. तो डू यू थिंक इग्नेशिया वुड बी हेल्पफुल फॉर समथिंग लाइक दिस, अगर वो बैग हम रिमूव कर दें? अच्छा, अब एग्जैक्टली अब ये अब मैं और पूछूंगी. अब इग्नेशिया तो ऐसे बच्चों के लिए भी होते हैं ना कि जिसमें होम्योपैथिक रेमेडी में क्या होता है कि देयर इज अ वन बेसिक मेजर सिम्टम एंड देयर आर मैचिंग सिम्टम्स. Gotcha. If you have like 3 or 4 matching symptoms, that would be a perfect remedy. जैसा फॉर एग्जाम्पल अब इग्नेशिया उन बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी होती है जो कि रोते रोते हंसना शुरू कर देते हैं, हंसते हंसते रोना शुरू कर देते हैं. इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं एडल्ट्स में. एंड एक्चुअली मैंने एक थेरेपिस्ट को से मिली भी थी जिसने एक बच्चे को डायग्नोज किया था कि इस बच्चे को ना ऑटिज्म के अलावा, वो बच्चा बेचारा 6 साल का था, उसने कहा इसको ऑटिज्म के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, बिकॉज ये बच्चा जो है वो हंसते हंसते रोना शुरू कर देता है. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट कि हाउ दिस इज सच अ देयर्स इंस्टेड कि आप एक डायग्नोसिस ऑन द टॉप ऑफ ऑटिज्म ले आए, इसका इतना अच्छा, इतना आसान हल है, इसका इतनी अच्छी इफ वो एक रेमेडी के साथ उसको कंसिस्टेंटली अगर वो गुड एक प्रॉपर डोजिंग में दी जाए तो ये बिल्कुल ही विल इम्प्रूव, हिज एंजाइटी विल इम्प्रूव एंड ही विल स्टॉप डूइंग इट. क्यों? ये बच्चे की ना डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी होती है, बिकॉज वो और ये बच्चा बड़ा कॉमन है. मेरे अपने बेटे ने कुछ अर्सा ये काम किया कि जिस तरह वो करते हैं बच्चे थेरेपी में बैठे हों तो वो नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, फिर उठा के पेपर फेंक रहे होते हैं, फनी काम करते हैं, ओ ये ब्लॉक टावर गिर गया जिसे कहते हैं थेरेपी वर्ल्ड में. हाँ जी, एग्जैक्टली. सो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और अगर इट डजंट वर्क देन दे स्टार्ट क्राइंग बिकॉज दे आर लाइक ओ दिस डिडंट वर्क एंड दे आर स्टिल आस्किंग मी टू डू इट. सो ये जो इस लेवल की एंजाइटी है जो कि उस वक्त हो रही है, बच्चा इज गोइंग थ्रू दैट, वो उस एंजाइटी से जा रहा है क्योंकि वो एक थेरेपी सेशन में ऑब्वियसली एंग्शियस है, तो उसके लिए इग्नेशिया वुड बी अ वेरी गुड थेरेपी रेमेडी. फिर लास्ट में सिर्फ एक जलसीमियम इसलिए क्योंकि जलसीमियम इज वेरी दिस इज एक्चुअली रेमेडी फॉर माय सन जिसमें सोशल एंजाइटी है. लेकिन अब देखे ना, कहते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे ना वो अकेले रहना चाहते हैं, उनका नहीं दिल चाहता. नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ऑपोजिट हो सकता है. हाँ, वो उनको सोशल एंजाइटी है लेकिन वो एक्चुअल में चाहते हैं फ्रेंड्स बनाना, उनका दिल चाहता है कि बच्चे आए उनसे खेलें, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें. एंड जलसीमियम इज द रेमेडी फॉर दैट. एंड एक्चुअली जलसीमियम बहुत सारे मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को. हल्का सा मैं ये बताऊंगी कि हर बच्चे की एक अगर आप जो है अपनी जर्नी में कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डिसाइड कर दें तो इट्स लाइक, मैं उस दिन लिख रही थी, इट्स लाइक अ फ्रेंड फॉर लाइफ, कि 80% आपके मसलों का जो है ना वो एक रेमेडी हल है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जलसीमियम खिलाएंगी और एक बच्चे को घर में भेजेंगी और वापस निकलेगा कोई और बच्चा, लेकिन इट वुड बी लाइक कि जिस तरह आपको ठंड लगती है ना, तो आप जाते हैं, आप स्वेटर खरीदते हैं कि मैं जैकेट लूंगी क्योंकि मुझे जब ठंड होगी ना तो मैं जैकेट पहन लूंगी. इसका ये मतलब तो नहीं कि एक दफा आपने जैकेट खरीद ली तो अब आपको जिंदगी में ठंड ही नहीं ये कह रहे हैं कि अब आपकी ठंड खत्म हो जाएगी. आप बिल्कुल बतूल आपने जैकेट खरीद ली, अब आप मसला हल. तो यार ये तो मगर लाइक दिस इज सो अमेजिंग कि अगर हम ज्यादातर पेरेंट्स इस बात की अवेयरनेस डेवलप करें कि आप एक जिसे कहते हैं ना मल्टी अप्रोच रखें, मल्टी फैसेटेड अप्रोच रखें. आपने थेरेपीज भी की, ओटी भी है, आप अपनी पेरेंटिंग को भी, पेरेंटिंग का गेम भी स्ट्रॉन्ग करें ना, पेरेंटिंग नहीं वीक होनी चाहिए, उसका गेम भी स्ट्रॉन्ग करें. फिर आपने रेमेडीज के साथ भी बच्चों को एडिशनल सपोर्ट दिया. तो नाउ यू आर लुकिंग एट द फुल पिक्चर कि अच्छा अब बच्चा किधर है,
right? तो that is amazing insight. और अच्छा why मुझे would you not do it as a parent? आप you should do whatever you can, no matter what type of thing. Oh, don't listen to people, just do your own. मैं इसीलिए हर तरह से, जिस तरह हम हॉर्स राइडिंग की बात करें, हम रेमेडीज की बात करें, हम सप्लीमेंटेशन की बात करें, हम स्ट्रेटजीज की बात करें, आपने सब कुछ करना है। और आप ये देखेंगे कि ये मैंने तो खुद देखा है कि मैंने सीखना तो अपने बेटे के लिए शुरू किया, लेकिन अब मुझे लगता है हर एक को जरूरत है। बिल्कुल नहीं, you're so right. I love these remedies and actually I can't wait to use a couple of them. और इधर मैंने इसी मौजू के ऊपर कुछ सप्लीमेंट्स के भी चूज किया है फॉर टुडे। तो आई मीन मेरे नजदीक मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है, इसके ऊपर मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट भी की हुई है फेसबुक के ऊपर, और आई थिंक ज़ैनब ये मेरा और आपका यकीनन फेवरेट सप्लीमेंट होगा। घर से बाहर मैग्नीशियम के बगैर कभी ट्रैवल नहीं करना है। तो मैग्नीशियम इज सच एन एसेंशियल मिनरल इन द बॉडी कि उस वो हम लोगों की डाइट से इतना ज्यादा इट्स आउट ऑफ आवर डाइट्स। और हमारे बच्चे क्योंकि पिकी ईटिंग भी करते हैं, मैग्नीशियम जो है वो ऑब्वियसली लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में ज्यादा पाया जाता है, तो हमारी डाइट्स मैग्नीशियम पुअर है। तो मैग्नीशियम के मैंने डिफरेंट तरीके पोस्ट में लिखे हुए हैं जो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड और उस ग्रुप में ही कि आप पोस्ट को चेक कर सकते हैं। नाउ L-theanine इज अनदर वन, ठीक है ना, तो वो भी कामनेस के लिए यूज होता है। यूजुअली शाम के अराउंड बेटर है देना, बिकॉज वो गैबा को स्टिमुलेट करता है। गैबा आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। गैबा इज द वे आपका बच्चा रेगुलेट करता है अपने आप को। इट्स अ रेगुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये मेरा फेवरेट है। दिस इज एक्चुअली इट हैज हेल्प मी सो मच। मुझे टाइम मैनेजमेंट, आई एम वेरी क्रेजी अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और मेरे बच्चों की स्विमिंग की क्लासेस थी और मैंने दोनों को लेके जाना था और मैं एंक्शियस हो रही होती। अब देखिए ना, एज एन एडल्ट आपको इस बात को, वो कहते हैं ना, आप you acknowledge and you validate that, and they always say anxiety is absence of real danger but fear in absence of real danger. अब I don't have anything to lose but I was so मैंने तो अपने बैग में रखी हुई थी and I used to chew it whenever I feel like कि मुझे लगता था ये ट्रिगर, जिसे मुझे अपना ट्रिगर आप येलो जोन में होती थी तो आप मैं उसी वक्त एड्रेस कर लेती थी। That's amazing. So I'm so glad that that's helpful. अच्छा, मैं अश्वगंधा भी यूज करती हूँ, मैं अपने लिए भी यूज करती हूँ और अयान के लिए भी। हमारा इवनिंग रूटीन के अंदर एक हिस्सा है। एक्चुअली हमें इसके ऊपर भी एक लाइव करना चाहिए कि ये एड्रीनल फटीग के लिए भी है ना, ये एड्रीनल सपोर्ट है ना, ये एड्रीनल सपोर्ट है। तो ये जैसे कि एक हमारे पास कमेंट आया है कि उनके बेटे को भी सेम इश्यू है, वो 2.5 साल के हैं बट ही इज स्लीपिंग, तो सोते से जाग जाएंगे जब उनकी छोटी साउंड सेंसिटिविटी, राइट, है, तो he gets irritated by that. तो I mean अश्वगंधा is great. अश्वगंधा के लिए एक चीज ये है कि अगर आपके बच्चे की इम्यून सेंसिटिविटी है या कोई इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो अश्वगंधा इज एन इम्यून स्टिमुलेंट। तो आप एक प्रैक्टिशनर के साथ काम कीजिए, वो बेटर है बजाय इसके कि आप गेस वर्क के साथ चलें। एवरीथिंग जो मैं और ज़ैनब आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इट इज नॉट अ मेडिकल एडवाइस। ये नहीं है कि ये जाइए ये कीजिए, नहीं, आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम कीजिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। मगर दिस इज ऑल फूड फॉर थॉट। ये सवाल आप पूछिए जरूर उन लोगों से जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। कैमोमाइल इज माई फेवरेट एज वेल। उसकी ऑब्वियसली हम टी बनाते हैं, तो आप टी के हिसाब से भी पी सकते हैं। बच्चों को आप जूस की जगह कैमोमाइल के साथ मिक्स करके चीजें दे सकते हैं। जूसेस के साथ ऑब्वियसली हटाने की कोशिश कीजिए बिकॉज ऑफ द हाई शुगर इनटेक एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, कैमोमाइल का एक ट्रिक बताऊं जो कि मुझसे काफी लोगों ने पूछा है। मैं कैमोमाइल के अंदर हमारी राइस भी पकाती हूँ, तो आई मेक अ कैमोमाइल पुलाव। नाइस, या एंड इट टेस्ट ब्यूटिफुल। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप कैमोमाइल के ब्रू हुई भी कैमोमाइल के अंदर आप दाल भी बना सकते हैं। कैमोमाइल दाल इज ब्यूटिफुल एज वेल एंड इट्स जस्ट कामिंग एंड ग्राउंडिंग एंड वार्मिंग। तो ट्राई दीज, बी क्रिएटिव विद इट। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। और हम लोग को वो जो कैमोमिला एक होम्योपैथिक रेमेडी है विच इज एक्सीलेंट रेमेडी। और हम तो कोई ज्यादा ग्रम्पी हो रहा ना, तो हम तो अपनी फैमिली में कहते हैं कि आपको तो कैमोमिला की जरूरत है। We have a joke कि हम लोग एक्चुअली ज़ैनब यू टोल्ड मी अबाउट कैमोमिला, तो मैं तो वो मेरी उसमें फर्स्ट एड में मौजूद है जो कि घर में हमारी है कि लाइक जैसे ही मुझे लगता है कि कोई इवेंट होने वाला है या अयान की एंजाइटी किसी भी चीज को लेके ज्यादा ट्रिगर्ड है, तो आई सप्लीमेंट विद कैमोमिला रेमेडी। नो, आई लव इट टू। एक दो मैं
एक दो बुक्स का मैं वो बताना चाहूंगी कि एक एंजाइटी बेस्ड ही बुक है, द होल ब्रेन चाइल्ड, वो बहुत अच्छी है। उसमें बड़ा बहुत हेल्पफुल है। एंजाइटी फ्री किड्स एक बुक है, ये भी बड़ी मुझे हेल्पफुल की। आई एक्चुअली फाउंड इट रियली हेल्पफुल। दोनों बच्चों की बेस है, पेरेंटिंग बेस्ड है, एंजाइटी के लिए आपको हेल्प करेंगी। एक और है हेल्पिंग योर एंशियस चाइल्ड, और उसके अलावा वो जो इमोशनल टूल किट जो है वो तो हम लोग डेफिनेटली, वो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो यू कैन पीएम मुझे या बतूल को, एंड वी विल शेयर दैट पीडीएफ। एक वो भी है ना एक्सप्लोसिव चाइल्ड, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी अच्छी है। अच्छा, एक ये सवाल है नॉट, आपके। आर वी टॉकिंग अबाउट द सेंचुरी? वी शुड बी रैपिंग अप। हम लोग घंटे से बोल रहे हैं, लोग कह रहे होंगे कि ये तो शुरू ही हो गई। या आपके लिए मगर एक सवाल आया है जैनब के, कैमोमील एंड अश्वगंधा होम्योपैथी में यूज कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो डोजिंग क्या है एड्रिनल फटीग के हिसाब से? um, डोजिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके इट्स बेस्ट दैट यू वर्क विद अ प्रैक्टिशनर, क्योंकि वो ये थोड़ा यानी कि अनएथिकल हो जाएगा टू जस्ट टेल यू अ बॉल पार्क। वैसे तो हर मेडिकेशन या हर रेमेडी जो आप लेते हैं उसके पीछे लिखा हुआ होता है रेकमेंडेड डोज, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन। लेकिन ये सवाल हाँ जरूर अच्छा है कि क्या हम हर्ब्स और होम्योपैथी और बायोमेड सब मिला सकते हैं? जैनब, व्हाट डू यू थिंक? Definitely. I हालांकि मैं आई एम अ क्लासिकल होम्योपैथ एंड आई जस्ट डू क्लासिकल होम्योपैथी, एंड आई विश आई कुड डू, एक दिन एक दफा लाइव करेंगे बिकॉज देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ, क्योंकि सीज थेरेपी बहुत ज्यादा ऑटिज्म में फेमस है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इट। लेकिन आई डेफिनेटली कर सकते हैं इस वजह से कि देखें, जो होम्योपैथ क्लासिकल होम्योपैथ है ना, वो क्यों आपको कहते हैं कि आप जो है सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथी करें और आप कुछ और एक साथ में ना करें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सर में दर्द हो रही है और मैं कहती हूँ कि मैंने, तो या तो मैं होम्योपैथिक रेमेडी सर की दर्द की ले लूं या मैं पैनाडोल ले लूं। सी, अगर मेरे में पेशेंस नहीं है, बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम मोर देन द पैनाडोल पैरासिटामोल। लेकिन अगर मैं इसका फिर इसके दो तरीके। सो अगर मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं, तो मैं ये कर सकती हूँ जिस तरह कुछ लोगों को माइग्रेन्स होती है, तो आप अभी तो पैनाडोल पैरासिटामोल खा लें, लेकिन आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं माइग्रेन की, विच तो उसमें क्या होगा कि वो तो आपके लिए बैंडेड है ना, वो तो पेन किलर है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको कॉन्टिन्यूसली बार बार या कोई एक चीज है, तो आप उसके तो अंडरलाइन इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश करें। तो उसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट, उसके लिए फिर होम्योपैथिक रेमेडी वुड बी गुड, क्योंकि आप जो है ऐसा करें कि आपको माइग्रेन खत्म हो जाए, आपको और ना हो। सी, लेकिन सो यू कैन एक्चुअली कंबाइन बोथ ऑफ देम। और जिस तरह मैंने पहले भी कई दफा ये एग्जांपल दी है, हेवी मेटल किलेशन लोग कर रहे होते हैं बायोमेडिकल में, या पैरासाइट को एड्रेस कर रहे हैं या इम्यून सिस्टम को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें आप लिवर सपोर्ट, आपके पास को कितनी चॉइसेस हैं। एंड आई हैव यूज्ड सो मेनी, आई हैव लाइक अ टन्स ऑफ लिवर सपोर्ट, एड्रीनल सपोर्ट, जिस तरह बतूल ने जिक्र किया। तो इस यू कैन ऑलवेज कंबाइन द टू, आपको दोनों चीजें हेल्प करेंगी। और बल्कि मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट ये रिलीफ भी हो जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपने बेटे को सुबह कोई बहुत ही गंदी टेस्टिंग कोई हर्ब दी है या कोई मेडिकेशन दी है, तो ही वुड बी एक्साइटेड एंड आई वुड बी रिलीव कि अच्छा जी, अब मैंने दोपहर को ना ये सिर्फ 2 डोजेस जो है वो होम्योपैथिक रेमेडी की देनी है, और मुझे उस प्रोसेस से दोबारा नहीं गुजरना। और इस वजह से भी, क्योंकि लाइक बतूल मेंशन कि मैं उस दिन ये मैं कि जो ये जूस है या जो चीज है। जूस है, या जिस तरह ये योगर्ट्स होते हैं या Oh, yeah. आइसक्रीम है, अगर आप जो है वो सप्लीमेंट को उसमें मिक्स करके दे रहे हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि अब फ्रूट योगर्ट इज एक्चुअली टोटल वेस्ट, उसमें लाइव कल्चर जो आप प्रोबायोटिक इफेक्ट होता है ना, वो कहते हैं बिल्कुल जीरो, इट्स अ डिजर्ट, इट्स Oh, एक्चुअली right. कंप्लीट। आप वो चॉकलेट ब्राउनी दे दें बच्चे को, आई मीन वो तो ग्लूटेन व्हाटएवर, वो तो एक वी कैन गो सेपरेट ही टॉपिक हो जाएगा न्यूट्रिशन पे, लेकिन तो आप वो आज ना चॉकलेट जाए। ब्राउनी दे दें या आप उसको वो दे दें, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो योगर्ट के लाइव प्रोबायोटिक्स उसमें नहीं आपको जा रहे, बिकॉज द शुगर किल्स एवरीथिंग, सो देयर इज नो पॉइंट। सो उस Yeah. केस में आपके लिए ये जो होम्योपैथी एक्चुअली वर्क्स वंडर्स, बिकॉज इट्स इजियर टू टेक, इट हैज, इट्स टेस्टलेस, और
इसलिए इन कॉम्बिनेशन इट वर्क्स, बिकॉज अगर आपका बच्चा जो है कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दूसरी ले रहा है या 4 और सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो फिर जो 2 सप्लीमेंट्स, जैसे लिवर सपोर्ट बहुत अच्छी है, चिल्डोनियम इज लाइक एन अमेजिंग लिवर सपोर्ट फॉर all the liver issues. तो एक सवाल है हमारे पास, माय सन हैज एक्सट्रीम बिहेवियर इशू, वो सोशलाइज नहीं करता, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट? हमने आई थिंक अभी जो है वो स्पेसिफाई की है, यू मेंशन्ड द वन फॉर द सोशल एंजाइटी, ज़ैनब। हाँ, 2 जलसीमियम थी, लेकिन इसमें वो, और जैसा बतूल ने कहा, आई मीन मैं हमेशा ये कहती हूँ, यू डोंट हैव टू वर्क विद मी और बतूल, आप, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी प्रैक्टिशनर के साथ काम करें। और मैं थोड़ा सा सिर्फ इसलिए भी कहूंगी कि प्रैक्टिशनर भी वो होना चाहिए जिसको थोड़ी सी ऑटिज्म की भी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि यही कनेक्शन जो है, मैं खुद एज एन ऑटिज्म पेरेंट एंड एज अ होम्योपैथ, मुझे इस बात का ये गैप मुझे खुद फिल करना पड़ा कि आपका, मुझे अभी भी आप आम जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये कितनी सर में दर्द है, कितनी दफा है, कितना हो रहा है, आप अच्छा क्या, मतलब मेरा बेटा 11 साल का है, वो मुझे नहीं बताता कि मुझे दिन में 2 घंटे सुबह सर में दर्द हुई और रात को 2 घंटे सर में दर्द हुई। एंड दैट्स व्हाई एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर कोई वेल वर्स्ड डॉक्टर होगा या वेल वर्स्ड प्रैक्टिशनर होगा जो कि उस प्रोसेस से भी गुजरा है और उसको रिलेट भी कर सकता है आपकी एक्सपीरियंसेस से, कि जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप गेस वाले आंसर दे रहे हैं, आपको 100% श्योर नहीं है, आप जब वो बिल्कुल अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करें, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दिस इज व्हाट आई थिंक, सो देयर इज ऑलवेज अ margin of error. So वो understanding बड़ी जरूरी है, and I feel like मैं, if Batul would let me say that, कि all throughout 7 years of biomed जर्नी, मैंने डिफरेंट मैप्स डॉक्टर को दिखाए, मुझे लगा द बेस्ट वंस आर द वन जो खुद पेरेंट है। सही बात, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। और आई मीन अब मेरे ख्याल से कि यू नो हम थोड़ा रैप अप करने की तरफ आ ही जाते हैं, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो गया है। सिर्फ एक सवाल ये मैं मेंशन करती जाऊं कि किसी ने लिखा है, आई हर्ड प्रोलॉन्ग्ड और कंटिन्यूड यूज ऑफ अश्वगंधा कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस और डिस्टर्बेंस, इज दिस राइट? देखिए, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू कॉज सम काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जिसका प्रोलॉन्ग यूज इज नॉट गोइंग टू कॉज सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस। बैलेंस का मतलब ही यही है कि आप जो है वो रेशो में चल रहे हैं। तो आप जो है आपके बच्चे के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आपके खुद के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप यू नो वो चीज आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो ऑलवेज मेक रीजनेबल डिसीजंस एंड ऑलवेज यू नो well if possible work with a practitioner for those conditions, because ये आपको नहीं पता कि अंदर बच्चे के क्या चल रहा है। हो सकता है you need some lab test done first, ताकि आप भी थोड़ी कंफर्टेबल और पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ैनब, लेट्स टॉक अबाउट हाउ हर बच्चे को जिसको एंजाइटी है उसको सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं होगा। यू गो अहेड। एग्जैक्टली अच्छा, ये जब मैं और बतूल ये बात कर रहे थे कि हम एंजाइटी पे करेंगे, तो मैंने कहा था मैं तो स्टार्ट इससे करूंगी और कि वो स्टार्ट ये वाली कि देखें, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है ऑटिज्म में कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म, राइट? इट्स एक्चुअली अ मेजर सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। DSM-5 अगर आप देखें तो उसमें 4-5 उन्होंने काफी चेंज किया है, और उसमें उन्होंने सेंसरी प्रोसेसिंग जो है डिसफंक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म डायग्नोसिस, इट्स अ बिग सिम्टम। सो जो उस बच्चे का जिसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो, एंग्शियस होना कोई बड़ी बात, इट्स अ कोइंसिडेंट, इट्स अ लाइफ, इट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर देम। और लेकिन अगर जो सेंसरी जो एंजाइटी से रिलेटेड कैसे होगा, क्योंकि वो इनपुट फैक्टर्स है ना, और मैं सेंसरी प्रोसेस, मुझे एंजाइटी और ये इसलिए कनेक्ट भी करता, मैं हमेशा कहती हूँ बिकॉज इवन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिससे स्टिमिंग है, आप स्टिमिंग देखें, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऐसा है कि मुझे भी कोई सेंसरी इश्यूज होंगे, बतूल भी एड्रेस, बट वी आर नॉट हाईलाइटेड, दे आर अंडर कंट्रोल, वी आर एबल टू रेगुलेट इट। बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि वो जो हम लोग स्कूल में होते थे तो हमारे वो चॉक बोर्ड्स होते थे, नेल्स कोई उस पे करना,
मुझे मैं बिल्कुल वो नहीं कर सकती थी। टेक्सचर आपकी वो प्रायोरिटीज होती हैं, आप टेक्सचर में अपनी फेवरेट होता है, विच वन इज नॉट, सो वी ऑल डील विद इट एंड एंजाइटी इज द सेम, सो दे ऑलवेज गो टुगेदर। इसमें सिर्फ एक बात मैं मेंशन करना कि एंजाइटी और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऐसे बच्चे को भी हो सकता है जिसको ऑटिज्म नहीं है। और ये बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि बच्चे एंग्शियस, बच्चे, वो साइकोलॉजिस्ट दे ऑलवेज टॉक अबाउट इट दैट कि वो एक एंग्शियस बच्चे को लेके आते हैं और वो लेके जाते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस। सो और द अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा जो है वो सुबह फायर हाइड्रेंट को देख के एंजाइटी का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि फायर हाइड्रेंट उसको रिमाइंड करेगा फायर अलार्म का। अब इधर तो बहुत कॉमन है, फायर अलार्म की ड्रिल्स होती हैं, वो बहुत लाउड होता है फायर अलार्म, सो वो उसको उससे कनेक्ट करेगा और वो फायर हाइड्रेंट को देख के जो है सुबह उठेगा, उसको लाइट सेंसिटिविटी होगी तो उसको ब्राइटनेस से एंजाइटी होगी, बिकॉज ही वुडंट बी हिमसेल्फ। सो ऑल दीज कामिंग स्ट्रेटजीज जो कि इसलिए मेरे ख्याल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी would help your child calm down because वो sensory integration पे काम करती है। I mean, this is a big topic. We can do a whole different live. और बल्कि मैं इस पे फिर मैं ये question I want to put it out there because we have lots of people signing in. So आप लोग जरूर शेयर करें कोई भी टॉपिक अगर आपको फ्यूचर लाइव्स अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक्स के ऊपर मैं और ज़ैनब आएं और फिर से गुफ्तगू करें तो प्लीज डू शेयर। आप फेसबुक की वॉल के ऊपर भी लिख सकते हैं। वी वुड लव सम फीडबैक फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच ज़ैनब आज के एक अमेजिंग सेशन के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड वर्किंग विद मी। थैंक यू एवरीवन जो कि आज यहाँ पे आए। अगर आपको मुझसे या ज़ैनब से राब्ता करना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। यू कैन कॉन्टैक्ट द हेल्थ जंक्शन टीम ऑन दैट वन। ज़ैनब भी हेल्थ जंक्शन का हिस्सा है, मैं भी हूँ, and we will love to help you. आप हमारे Facebook के ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, and if you want to be a part of our WhatsApp group तो भी आप हमें मैसेज जरूर कीजिए। Thank you so much everyone. Thank you for watching this and keep the questions coming. Thank you Zainab. Yeah, thank you so much. Thanks. Take care everyone.